Welcome back all. Welcome back all to the next session of the OJS week on the topic role of Ayurvedic lifestyle. So, Abhijit sir, are you there, sir? Yes, sir. So everything is set. I request Miss Arundhati to introduce our today's guest. Good evening to one and all. I feel very privileged to introduce our resource person for this evening, Vaidya Abhijit Saraf sir. Sir has completed his BA MS in the year 2005 from SS Ayurved Mahavidyalaya, Hadaspur, Pune. He has done his MD in Samhita and Siddhanta from BSDT's Ayurved Mahavidyalaya, Wagholi in the year 2010. Sir has finished his PhD and secured a gold medal from Tilak Maharashtra Vidyapeeth in the year 2016 for his thesis, Critical Comparative Study of Commentaries on Charaka Samhita Vimanasthana. Sir has done his postgraduate diploma in the psychological counseling from Institute of Behavioral Management Sciences, Chittor, Andhra Pradesh in the year 2016. He has also done his MS in psychological counseling from the Institute of Behavioral Management Sciences, Chittor, Andhra Pradesh in the year 2017. Sir has worked as professor in Samhita Department of SSAM&H, Nashik, and is a postgraduate guide for 4 students who have completed their MD and 4 students who are undergoing MD. Sir has authored 12 international articles and in peer-reviewed journals and 84 national articles. He is the member of CCIM Syllabus Drafting Committee to 2020 and founder of Agastya Foundation Nashik, and also the Vice Secretary in Anant Ayurveda Pratishthan, Pune. He has written over 8 books, namely Bhava Prakasha Nigatu Pradipa, Maulik Siddhanta in Marathi, Sudha Shastra, Roganikam Vimanam in Marathi, Maulik Siddhanta in Hindi, Roganikam Vimanam in Hindi, and is the editor of Charaka Ohana. He is the proud recipient of more than 14 awards. Some of them are Charaka Puraskar by Vishwa Ayurvedic Sangatana in Delhi in the year 2020, Karya Bhushan Award by SS Ayu College, Pune in the year 2020, Acharya Puraskar by Prachin Samhita Gurukul, Pune in the year 2019, Dhanvantri Award by Nirok Street, New Delhi in the year 2019, and Sudha Devi Bele Sanskrit Award by Sanskrit Bhasha Sabha, Nashik in the year 2019. Vaidya Abhijit Saraf sir has organized 147 Charaka Samhita Nirupana all over India with respected Dr. Anant Dharmadhikari sir. A very warm welcome to you, sir. Thank you. Can I share my slide? Please share, sir. नमो नमः ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वैशरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। यहाँ पे उपस्थित सभी अभ्यासकों का, मान्यवरों का स्वागत है। मैं मेरा व्याख्यान हिंदी भाषा में देने वाला हूं क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं उसमें। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। इज इट विजिबल? Yes, sir. Now it's yes, sir. It's visible, sir. Okay. तो आज का जो हमारा विषय है उसका महत्व कितना है ये आपको इस व्याख्यान के बाद शायद मैं मतलब पर्कुलेट कर पाऊंगा मैं कि कितना महत्व का विषय है और ये अति परिचित अवज्ञा से ये दूर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हम ज्यादा
जो चीजें नित्य दैनंदिन होती है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। और इसलिए लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए और आयुर्वेद ने क्या लाइफस्टाइल या कि किस प्रकार का दिनचर्या बताया है, ये हम पहले वर्ष से पढ़ते हैं। और ये इतना जो विषय है ये इतने बार हमारा हो चुका होता है कि उसका महत्व ही पता नहीं चलता। मैं दिनचर्या यहाँ पे सिखाने वाला नहीं हूँ, वो सब आपको आता है। वो दिनचर्या उसमें अलग सिखाने की क्या बात है, वो तो सभी को आपको आता है, आराम से आता है। पर उसके पीछे जो लॉजिक है और इम्यूनिटी के लिए दिनचर्या क्या क्या महत्व है और उसमें लाइफस्टाइल में क्या क्या घटक आते हैं, उसका विचार हम करेंगे। और इम्यूनिटी क्या है, अभी बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ। मैंने पूरा व्याख्यान तो नहीं सुना, लेकिन अंतिम कुछ हाफ एन आवर 1 घंटा तो जरूर सुना है। और मैं सर से भी सहमत हूं कि मैंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है और मैं लेने का अभी भी सोच भी नहीं रहा हूं। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अगर हम लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की निज आगंतु व्याधियां नहीं होती है, ऐसा खुद चरक कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं, वाग्भट कहते हैं। तो जो आयुर्वेदीय दिनचर्या, आयुर्वेदीय जो आयु है, उसका व्याधि क्षमत्व के बारे में क्या विचार है वो हम देखेंगे। भगवान अश्विनी कुमारों को वंदन करके हम आगे व्याख्यान शुरू करेंगे। ये आप सूत्र में हमेशा हर व्याख्यान में बताता हूं, आज भी बताऊंगा कि सतत अध्ययन वाद परतंत्रावलोकनम तद्विद्य आचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करोगण। तो नित्य अध्ययन रत होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, दूसरे तंत्रों का अध्ययन करना चाहिए और जो इस शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति है उनके सहवास में रहना चाहिए। Am I audible properly? Yes, sir, you're audible, sir. Okay. And slides are also visible, sir, clearly. Okay. Thank तो you, sir. आयुर्वेद की व्याधि क्षमत्व की कल्पना क्या है? व्याधि क्षमत्व ये शब्द सिर्फ 2 जगह पे आया है। एक चरक संहिता का सूत्र स्थान का 28वां अध्याय और अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान का अध्याय। तो व्याधि क्षमत्व ये कल्पना आयुर्वेद में है या नहीं, तो उसके जो 2 सूत्र है वो हम देखेंगे। ज्यादा उसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है। तो व्याधि क्षमत्व, जिसको आज इम्यूनिटी कहते हैं, उसको आयुर्वेद ने किस प्रकार से विचार किया है वो हम कुछ मिनटों में देखने वाले हैं। 28वें अध्याय में अग्निवेश अत्रेय जी को कहते हैं कि केवल हिताहार उपयोग से कुछ नहीं होता। तन्निमित्ता व्याधयो जायन्ते न केवलम हिताहार उपयोगात एव सर्व व्याधि भय अतिक्रांतम भवति। केवल हिताहार के उपयोग से ही सभी व्याधि का भय निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके परे भी कुछ घटक है जिसके कारण व्याधियां हो सकती है। संति ही ऋते अपि अहिताहार उपयोगात अन्य रोग प्रकृतया। ऋते मतलब इसके बगैर, तो अहिताहार के उपयोग के बगैर भी रोग की प्रकृति मतलब रोग की उत्पत्ति है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हिताहार पथ्यकर आहार सेवन किया तो ही व्याधि अभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हेतु कौन से है, तो काल विपर्यय, जिसको परिणाम ऐसा कहते हैं, प्रज्ञापराधा और शब्द स्पर्श रूप रसगंधाश्च असात्म्य मतलब असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, ये त्रिविध व्याधि हेतु है, ये आप सबको पता है। इसमें बहुत आज के उक्त या अनुक्त ऐसे कोई भी हेतु आप ले लीजिए, वो आइदर इन तीनों में से किसी एक हेतु के संग्रह में जरूर बैठेंगे। आगे कहते हैं ताश्च रोग प्रकृतयो रसान सम्यक उपयुंजानम अपि पुरुषम अशुभेन उपपादयन्ति। वो कह रहे हैं कि ये जो रोग की प्रकृति है, रोग की उत्पत्ति है, रोग प्रकृतयो रसान सम्यक उपयुंजम, जो आहार रस का सम्यक उपयोग करता है, उसको भी ये 3 हेतुओं के कारण अशुभ कारक ऐसी रोग उत्पन्न होते हैं। तस्मात् हिताहार उपयोगिनो अपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः। इसलिए जो हिताहार सेवन करते हैं उनमें भी व्याधि उत्पन्न होता है, ऐसा दिखाई देता है।
और ये चरक के काल में भी दिखाई दे रहा था। चरक नहीं, आत्रेय कह रहे हैं, मतलब अग्निवेश, मतलब 6,000 साल पहले की बात है। आज भी कुछ अलग घटक नहीं है। अहिताहार उपयोगी नाम पुनः कारणतः न सद्यो दोषवान भवति अपचारा। और जो अहिताहार का उपयोगी करते हैं उनको तो वो हेतु ही उत्पन्न है। और ऐसा भी कभी कभी दिखाई देता है कि जो अहिताहार सेवन करते हैं उनको भी कभी व्याधि नहीं होते। तो ऐसा क्यों है? आगे कहते हैं, नहीं सर्वाणि अपथ्यानि तुल्य दोषाणि न च सर्वे दोषाः तुल्य बलाः न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। वो कह रहे हैं कि सभी जो अपथ्य है, सभी जो हेतु है, वो दोषों के समान होगा ही, ऐसा कुछ नहीं। बल के अनुसार दोषों के तुल्य बल नहीं होगा, हमेशा होता ही है, ऐसा नहीं है। कभी वो दोषों के बल से अल्प बलवान होगा और तो व्याधि उत्पन्न नहीं करेगा। न च सर्वे दोषा तुल्य बला, सभी दोष भी तुल्य बल नहीं होते। शरीर में दोषों की स्थिति भी ऐसी कभी कभी होती है कि छुटपुट कोई तो हेतु सेवन होता है, उससे कोई तो छुटपुट एक छोटा सा व्याधि उत्पन्न, एक लक्षण उत्पन्न होता है, छोटी सी चिकित्सा से या कुछ पथ्य से वो ठीक भी हो जाता है। ऋतुकालीन जो व्याधि उत्पन्न होती है, जैसे वर्षा ऋतु है, तो प्रतिष्ठा होना नैसर्गिक है क्योंकि ये ऋतु का स्वभाव है। तो ये हो गया, ये थोड़े से पथ्य से सेवन से, थोड़े से औषधि से ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय कोई बड़ा ही व्याधि उत्पन्न हो, ऐसा कुछ नहीं होता। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमता, और ये भी है कि प्रत्येक शरीर व्याधि सहन करने में समर्थ होगा, ऐसा नहीं है। तदेव ही अपथ्यम देश काल संयोग वीर्य प्रमाण अति योगात भूयातरम अपथ्यम संपद्यते। इसलिए अपथ्य जो होता है वो एक रिस्पेक्टिव टर्म है। जैसे वो किसी देश के, मतलब जो केरल का व्यक्ति राइस प्लेट खाता है तो केरल में जो राइस प्लेट मिलती है वो राइस और प्लेट दो ही चीजें आती है, बराबर है। बहुत बड़ा राइस, बहुत ज्यादा राइस खाते हैं उनको वहां उसका पचन आराम से वहां पे हो जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति पंजाब में बैठकर इतना राइस खाएगा तो उसको वो पचा नहीं पाएगा, उसको वो अपथ्य होगा। आप गुजरात में जाओगे तो राइस प्लेट में बहुत सारी घटक चीजें आती, बहुत सारे आते हैं। अगर वो गुजरात का जो फूड है, क्या जो बहुत सारे घटक है उनके नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो अगर आप बंगाल में बैठ के खाना खाओगे तो आपको वो आप पचन करने में असमर्थ हो जाएंगे। और बंगाल का जो फूड है वो गुजरात में आप खाने पचन नहीं कर, एक बार खा सकोगे पर दैनंदिन नित्य सेवन में के लिए वो अयोग्य है। इसलिए देश के अनुसार भी अपत्य की कल्पना बदल सकती है, काल के अनुसार बदलती है। जो वर्षा ऋतु में पथ्य है वो ग्रीष्म ऋतु में पथ्य नहीं है, जो ग्रीष्म ऋतु में पथ्य है वो शिशु ऋतु में पथ्य नहीं है, जो बाल्यावस्था में पथ्य है वो वार्धक्यावस्था में नहीं है, और जो वार्धक्यावस्था में पथ्य है वो मध्यमावस्था में पथ्य नहीं है। तो इस प्रकार से काल के अनुसार भी पथ्यापथ्य की कल्पना बदलती है, संयोग से भी बदलती है। आप एक द्रव्य, आप मधु सेवन कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप मधुर घृत समान मात्रा में सेवन कर रहे हो तो वो विष कारक है। आप केवल दधी सेवन कर रहे हो तो वो अपथ्य है। किंतु आप दधी के साथ शर्करा, दधी के साथ मुद्ग, दधी के साथ कुछ और अमल की ऐसे द्रव्य मिला के दधी सेवन करोगे तो वो पथ्यकर हो जाएगा। और काल के अनुसार दधी रात्रि में खाओगे तो वो अपथ्य है, दिन में खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मात्रा में भी है। तो वीर्य शक्ति, जिसकी शक्ति कैसी है उसके अनुसार भी वो पथ्य बदलते हैं। प्रमाण, मात्रा अभी मैंने बताया, और मात्रा का विचार हम आगे करने वाले हैं। तो क्या मात्रा में आप ले रहे हो? छोटा सा कुछ चम्मच भर के दही सेवन किया तो आप अरे आपने हेतु सेवन कर लिया, आपको प्रतिष्ठा हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर व्यक्ति के अनुरूप भी पथ्यापथ्य की कल्पना बदलती है। इसलिए स एव दोषः संसृष्ट योनि ही विरुद्धोपक्रमो गंभीर अनुगत शिरस्यतः प्राणायतन समुत्तः मर्मोघाती कष्टतम क्षिप्रकारितमश्च संपद। एक ही दोष हेतु के अनुसार अलग अलग व्याधि उत्पन्न कर सकता है, अलग अलग प्रकार के व्याधि उत्पन्न कर सकता है। इसलिए शरीराणि च अति स्थूलानि अति कृशानि अनिविष्टमांस शोणिति अस्थिनि दुर्बलानि असात्म्य आहार उपचितानि अल्पाहाराणि अल्पसत्वानि च भवन्ति व्याधि असहानि, भवन्ति अव्याधि सहानि, ऐसा उसका भेद है। मतलब जो शरीर, जिस मनुष्य का शरीर अति स्थूल है, अति कृश है, जिसका मांस और शोणित और अस्थि ये प्राकृत नहीं है, जो दुर्बल है, जो असात्म्य आहार का उपसेवन करता है, जो उपचित नहीं है, अल्पाहार सेवन करता है, और जिसका सत्व विकृत है, ऐसे व्यक्ति को
छोटा सा भी व्याधि वो सहन नहीं कर पाएगा। और विपरीतानि पुनः व्याधि सहानि, और इसके विपरीत जो ना स्थूल है ना कृश है, जिसके मांस शोणिता अस्थि आदि धातु योग्य प्राकृत अवस्था में है, पुष्ट है, जो बलवान है, सात्म्य सेवन करता है, जो उपचित शरीर का है और आहार योग्य मात्रा में लेता है और सत्व उसका अच्छा है, उसको बड़ी बड़ी व्याधियां भी सहन कर सकता है। यही कल्पना गुरु व्याधित और लघु व्याधित की कल्पना चरक ने वर्णन की है। तो ये व्याधिक क्षमत्व का पहला रेफरेंस है। अब इसके ऊपर चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है वो भी बहुत महत्व की है। वो कह रहे हैं कि व्याधिक क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधिक क्षमत्व का अर्थ है व्याधि के बल का विरोधित्व होना। इसका अर्थ शरीर में ऐसे कुछ घटक होना जो व्याधि के बल को विरोधी घटक होंगे। यही कल्पना वैक्सीन की है, वैक्सीनेशन की कल्पना, इसी पीछे की कल्पना यही है कि अगर नैसर्गतः व्याधि क्षमत्व नहीं है तो हम इसको एक्वायर्ड करके उसमें व्याधि क्षमत्व निर्माण करेंगे, ऐसी वैक्सीनेशन की कल्पना है। पर आज वैक्सीनेशन का जो एक अतिमात्रा हो चुकी है, इससे कई प्रकार के एलर्जी डिसीजेस निर्माण हो रहे हैं। कि चेन्नई में जो डॉक्टर गिरिजा मैम है वो इसके ऊपर बहुत सुंदर काम कर रही है। तो व्याधि क्षमत्वम, इसका अर्थ व्याधि के बल विरोधी, मतलब व्याधि के बल को ऑपोजिट कार्य करने वाला होना, जिससे व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, जिससे व्याधि उत्पादन नहीं हो, व्याधि के उत्पादन को प्रतिबंधक करने वाला हो, इसको व्याधि क्षमत्व कहा जाता है। और एक संदर्भ व्याधि क्षमत्व, दूसरा संदर्भ जो है वो विरुद्धान्न विज्ञानीय जो अध्याय है इसमें है, और वो उसमें कहते हैं कि इसकी टीका देखिए नीचे, टीका ऐसी है, कश्चित ही न बलो बलाधिकेन रुद्ध कोपो न कुप्यति न च सर्वाणि वपुंषि व्याधि क्षमत्वे शक्तानि। संदर्भ विरुद्धान्न विज्ञानीय का है और वो कह रहे हैं कि देखिए पहला पंक्ति, न अपत्य सेवनम सदा सद्या प्रबादन्ते तदा मला प्रकोपम प्रतिविघ्नन्ति भिन्न दोष्यादिभिर यदा। जब अपत्य सेवन से मला इति दोषा, प्रकोपित दोषा, ये सद्य प्रकोपित होकर वहां पे दुष्टादि को दुष्ट करते हैं, किंतु सभी जगह ऐसा होता नहीं। न च सर्वोपचारो अपि सर्वदा सर्वदोषकृत, चरक का ही जो सूत्र अभी देखा उसका ही पद्यीकरण वाग्भट जी ने यहाँ किया है कि सर्व हेतु, सभी हेतु हमेशा ही दोष निर्माण, दोषों को विकृत करने वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर्वाणी अपथ्यानि तुल्य दोषाणी नैव च, कभी कभी सभी हर चीज हमेशा अपथ्य ही होगी ऐसा भी नहीं है, और तुल्य दोषाणी नहीं, और दोष हमेशा समान बल के विकृत रहेंगे ऐसा भी नहीं है। सर्वे तुल्य बला दोषा न च सर्वाणी वपुंषि व्याधि क्षमत्व शक्तानि, कभी कभी दोष बलवान भी, यही शब्दशः चरक का ही सूत्र है किंतु पद्य में लिखा है। इसलिए व्याधि क्षमत्व की कल्पना इस प्रकार की है। पर हमें आज की जो इम्यूनिटी जिसको कहते हैं उसमें अगर व्याधि क्षमत्व या शरीर को व्याधि नहीं हो, इसकी कल्पना अगर हमें विस्तार करना है तो हमें और एक घटक का विचार करना पड़ता है, और वो है धातु साम्य। धातु साम्य का ये अर्थ है, क्या है धातु साम्य? ये हमारा तंत्रस्यास्य प्रयोजनम ऐसा कहा गया है, किंतु धातु का अर्थ हम रसते शुक्र इतना ही लेते हैं, और उसका साम्य मतलब उसको प्राकृत अवस्था में रखना, यही कल्पना दिमाग में बीएमएस के लेवल पे बैठी रहती है। लेकिन धातु शब्द का अर्थ केवल रसद शुक्र नहीं है। तो जो शरीर में जो भी घटक दोष हो, मल हो, धातु हो, उपधातु हो, और भी कुछ हो, जो प्राकृत अवस्था में है उस समय उसको धातु शब्द से संबोधित किया जाता है। और उसका साम्य प्रस्थापित करना मतलब जो प्राकृत अवस्था में है उनकी प्राकृत अवस्था मेंटेन करना, और अगर उसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाए तो वो विकृति दूर करके पुनः उसको स्वस्थ साम्य अवस्था में लाना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। पर धातु साम्य कैसे पहचाना जा सकता है, ये वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में है। वो कह रहे धातु साम्य, ये पहला लक्षण तो इसका विकार उपशम, जो विकृति उत्पन्न हो गई थी, जो लक्षण उत्पन्न हो गए थे उसका उपशम हो गया, ये तो पहला लक्षण है। किंतु केवल उसी से धातु साम्य हम पहचान नहीं सकते, इसके लिए और भी कुछ घटकों की जरूरत है। केवल व्याधि ठीक होना ये धातु साम्य नहीं है, उसके साथ रोग उपशमनम, सभी प्रकार के वेदनाएं नष्ट हो गई है। स्वर वर्ण योगा, स्वर वर्ण गंध आदि सभी जो इंद्रियक जो विषय है ये प्राकृत अवस्था में है। शरीर उपचया, शरीर पुष्ट हो चुका है। बल वृद्धि, केवल पुष्ट नहीं है बल भी बढ़ा हुआ है। अव्यवहार्य अभिलाषा,
खाने की इच्छा होती है, दिन में 3 बार तो खाने की इच्छा होनी चाहिए, वो हो रही है। रुचि ही आहार काले, जब आहार काल है तब खाना जो है उसमें रुचि है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लगती है पर जब खाना सामने आता है तो जी मचलने लगता है, ऐसा भी नहीं है। अभ्यवृतस्य च आहारस्य काले सम्यक जरणम, जो खाया है अन्न उसका योग्य काल में जरण भी हो रहा है। निद्रा लाभो यथा कालम, यथा काल निद्रा भी प्राप्त हो रही है। निद्रा लेने के लिए कोई दवाई की, किसी चीजों की या बाकी अभ्यंग आदि किसी चीज की जरूरत नहीं है। वैकारिकाणाम स्वप्नानाम दर्शनम, सोने के बाद विकृत स्वप्न दिखाई नहीं दे रहे। एक तो स्वप्न क्योंकि स्वप्न ये दोषज है, निज दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं। जिनको ज्यादा स्वप्न आते हैं उनके हमेशा शोधन करना चाहिए, वो शोधनार्ह पेशेंट है। जैसे ही दोष वात पित्त श्लेष्मा निज दोष शांत हो जाते हैं, स्वप्न दर्शन होना बंद हो जाता है। इसमें कोई पीछे अतिदैविक आदि भौतिक ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ध्यान दीजिए। इंद्रिय स्थान में भी ये वर्णन किया है। सुखेन च प्रतिबोधनम, केवल इतना ही नहीं, निद्रा से जब जागृति आती है वो भी सुख कारक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि और एक आधा घंटा सो जाए, या किस लिए सुबह हो गई, मुझे सोना था, या उठने के बाद पीठ में दर्द है, पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, भूख नहीं लगी हुई है, मलवेग नहीं आया है, ऐसे लक्षण नहीं है। और वात मूत्र पुरुष तथा मुक्ति, उठने के बाद तुरंत वात मूत्र और पुरुष के रेतस और इसकी मुक्ति होनी चाहिए। और शुक्र का वेग भी जब जब योग्य काल उसका योग शुक्र वेग त्याग का काल आएगा तब बिना किसी अवरोध के शुक्र का भी वेग उत्पन्न होता है। और सर्वाकार ही मनोबुद्धि इंद्रियाणाम अव्यापत्ति, सभी प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रिय और शरीर भी इनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होना, इस सबको मिलकर धातु साम्य कहा जाता है। यही इम्यूनिटी की कल्पना आयुर्वेद की है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ आयुर्वेदा। ऐसा इम्यूनिटी नाम से केवल वैदिक शब्दों को पर्याय करके ढूंढना यह गलत है। धातु साम्य यही इम्यूनिटी की कल्पना है। अब और एक शारीर स्थान में चरक जी ने शरीर वृद्धिकर भाव बताए हैं, उसका भी हम थोड़ा सा संदर्भ देखेंगे कि काल योग मतलब जो यौवन आदि काल योग है या शिशिर आदि ऋतु के काल योग है, उसमें शरीर की वृद्धि होती है। स्वभाव संसिद्धि, स्वभाव इसका मतलब किसी किसी घटकों में स्वभाव से ही शरीर वृद्ध होता है, कुलश हेतु होते हैं। आहार सौष्ठ, उत्तम आहार, आहार अति मात्रा में नहीं किंतु जो गुणयुक्त आहार है ऐसा सेवन करना, यह भी एक शरीर वृद्धि करे। और अविघात मतलब मनोविघात, शरीर विघात कर जो भाव है इन सभी का त्याग होना, ये शरीर वृद्धि के हेतु है। साहस नहीं होना, अति साहस नहीं होना, साहस होना ठीक है पर अति साहस, अपने बल का विचार न करते हुए साहस करना, ये भी शरीर वृद्धिकर भाव नहीं है। तो अविघात ये बहुत अच्छा घटक है। ये 4 शरीर वृद्धिकर भाव है। अब जो रसायन की कल्पना है, हम रसायन अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सीधा हम रसायन चिकित्सा अध्याय में जाते हैं, लेकिन रसायन की जो कल्पना है वो सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में वर्णन की है, विविध अशित पीते। और वो क्या कहते हैं कि विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, जो चारों प्रकार का जो आहार है वो हितम, जो हितकर है, ऐसा अंतरग्नि संदुषित बले न, जो जठराग्नि का बल ये बढ़ाया गया है चिकित्सा से, उसमें यथास्वेन उष्मणा, जठराग्नि अपने खुद के उष्मा से, सम्यक विपच्यमानम, विपच्यमान ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको आराम से पचन करता करता हुआ कालवद योग्य काल में अनवस्थित सर्वधातु पाकम न विकृत हुए ऐसे सभी धातुओं का पचन करता है। अनुपहत सर्वधातुष्मा, सभी धातुओं का जो अग्नि है उनको भी विकृत नहीं करता। मारुत स्रोतः, वायु को भी अनुपहत नहीं करता, स्रोतस को भी विकृत नहीं करता। और केवलम, केवलम मतलब परिपूर्ण स्वरूप में, शरीरम उपचय, पूर्ण रूप से शरीर का उपचय, बल वर्ण सुख आयु, ये योजन इसकी युक्ति करता है, योजयति ये निर्माण करता है। और शरीर धातुन ऊर्जयति, और सभी शरीर धातुओं को ऊर्जा देता है। इसी को कहते हैं रसायन, यही रसायन की कल्पना है। धातवो ही धात्वा आहार प्रकृति मानुवर्धते, एक धातु ही दूसरे धातु का आहार होता है और उससे ही दूसरा धातु उत्पन्न होता है। एक दधि न्याय से हम समझ सकते हैं। और इस सूत्र की नीचे टीका बहुत सुंदर है और इसके आगे के 2-3 सूत्र में सभी न्याय वर्णन किए हैं। खले कपोत न्याय, क्षीरदधि न्याय आदि न्याय का टीका में वर्णन है। तो ये भी एक कल्पना धातु साम्य में आती है कि यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि धातुओं को बिना
विकृत किए। अगर आपको धातु को ऊर्जा देनी है, मतलब जो पार्थिव है वो पार्थिव को देंगे, रस का रस से पोषण होगा, रक्त का रक्त से, ये अगर करना है तो आपको आपका पचन योग्य प्रकार से होना आवश्यक है, और उसके लिए अवस्थापक उत्पन्न होना, अवस्थापक उत्तम होने ये आवश्यक है। जो दशविध परीक्षा भाव है उसमें कार्यफल है, और कार्य देखिए हम अभी भी प्री एम्बल में है, अभी तक हमने जो लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर गए ही नहीं है। हम पहले अभी इम्यूनिटी की कल्पना आयुर्वेद की क्या है उसका एक संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। तो कार्यफल क्या है, कार्यफल दशविध परीक्षा में है, उसका अर्थ है सुखावाप्ति, मतलब सुख की प्राप्ति होना। उसके लक्षण क्या है, मनोबुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि, मनस की तुष्टि, बुद्धि की तुष्टि, इंद्रियों की तुष्टि और शरीर की तुष्टि, यही कार्यफल है। मतलब जो चिकित्सा हमें करनी है उसका फल यह है। और इसी को धातु साम्य में ले सकते हैं, रसायन में ले सकते हैं, इसी को उत्तम अवस्थापक के अवस्था में ले सकते हैं, और इसी को व्याधिक क्षमत्व में भी हम ले सकते हैं। अब हमें प्राकृत समझने के लिए कभी कभी विकृत घटकों का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसलिए जो विकृति उत्पन्न होती है, जो विकार उत्पन्न हुआ है, इसके ऊपर से भी हम धातु साम्य व्याधिक क्षमत्व की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आगे कुछ घटकों के बारे में हमें इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही ये बता देता हूं कि चरक का विकार परीक्षण की कल्पना क्या है। वाग्भट ने एक संक्षेप में लिखा है फर्स्ट ईयर पहले अध्याय में कि रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी, कि आप निदान पंचक से रोग का परीक्षण कीजिए। पर चरक यहीं पे नहीं रुकते। चरक ने कहा है कि विकार का परीक्षण आपको करना है तो सबसे पहले आपको हेतु ढूंढने चाहिए। अब हेतु कैसे ढूंढेंगे, यही मेरा आज का व्याख्यान का विषय है, क्योंकि लाइफस्टाइल वही से जो आज के जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स आज मिलते हैं उसमें ये सभी हेतुओं को निकालना ही पड़ता है, और वही सभी हेतु है। तो हमें हेतु परीक्षण कैसे करना है, ये पहला घटक है। सबसे पहले हेतु का परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद दोषों का परीक्षण, क्योंकि दोषों की विकृति के बगैर व्याधि उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हेतुओं के बाद दोष परीक्षण, दोषों का अंशांश कल्पना, दोषों का संसर्ग सन्निपात, दोषों की विकृति की अवस्था बल, ये ढूंढना, ये इसका निदान करना, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद दोषों की विकृति, उसको ढूंढना। उसके बाद विकार की प्रकृति, मतलब विकार ये आम है, निराम है, नव है, जीर्ण है, निज है, आगंतु है, बाह्य है, अभ्यंतर है, कैसा है। यह प्रकृति का अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रकृति का अर्थ है विकार की प्रकृति क्या है, व्याधि का स्वभाव क्या है। बाद में देश, कौन से देश में, अब देश 3 प्रकार का होता है कि वो जो रुग्ण है वो जन्मा किस देश में है, वो बड़ा किस देश में हुआ है, और वो व्याधित किस देश में हुआ है। इस तीनों देशों का, देश मतलब यहाँ पे भारत, अमेरिका ऐसे कंट्री का ये नहीं है, कौन से प्रदेश, साधारण, जंगल, अनूप, ऐसे देशों का विचार करना है। काल, कौन सा काल है, अभी मतलब व्याधि तक का काल कौन सा है, कितने समय से है, कौन से वय की अवस्था में है, ऋतु कौन सा चल रहा है, सभी का विचार करना पड़ता है। और बल विशेष है, बल में शरीर का बल, दोषों का बल, व्याधि का बल, मन का बल, अग्नि का बल, सत्व का बल, इन सभी का विचार इसमें करना पड़ता है। इसके बाद लिंगतः परीक्षे, फिर लक्षणों के अनुसार उसका परीक्षण करना चाहिए। यही हमारी निदान की पद्धति होनी चाहिए। अब ये जो दशविध परीक्षा भाव है उसमें मतलब प्रकृतिता, विकृतिता, सारता, संवहनता, दशविध परीक्षा भाव है। तो वो कहते हैं कि उसका परीक्षण क्यों करना चाहिए, तो एवं प्रकृत्यादि नाम विकृति वर्जनाम भावानाम, उसमें से दशविध परीक्षा भावों में विकृतिता परीक्षण छोड़ के बाकी के जो 9 परीक्षण भाव है, प्रकृतिता, सारता, संवहनता, इसका क्या प्रयोजन है, तो हमें बल परीक्षण करने के लिए वो देखना है कि शरीर का बल क्या है, मनो का बल क्या है, अग्नि का बल क्या है, रुग्ण का बल क्या है। इसके लिए वो 9 परीक्षण भाव करने हैं। विकृति बल त्रैविध्येन तु दोष बलम त्रिविधम अनुमीयते, विकृतिता परीक्षण से हम दोषों का बल का अनुमान कर सकते हैं, और फिर इस शरीर बल का, अग्नि बल का, मानसिक बल का और दोषों के ततो इसके बाद वैषज्यस्य तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागेन त्रैविध्यम विभज्य यथा दोषम वैषज्यमावचार, इसके नीचे की जो लाइन है उसको चरक में अगर आपके सामने होगा तो उसको कलर करके रखिए कि वैषज्य के परीक्षण करके फिर दोषों के अनुसार आपको वैषज्य देना पड़ेगा।
वाग्भट यही कहते हैं कि भेषजम अवचारयन प्रागेव तावदेव मातुरम परिषद। जो आपको भेषज करना, अभी आपको समझो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल किसी को देनी है कि आपको क्लिनिक आपने ओपन किया है कि लाइफस्टाइल मॉडरेटिंग या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्लिनिक, ऐसा आपने किया, तो आपके पास जो कोई स्वस्थ या आतुर व्यक्ति आएंगे, उसको कुछ भी मैसेज देने से पहले, उसको कुछ भी नियम बताने से पहले आपको उसका परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। और परीक्षण इसका अर्थ स्टेथोस्कोप से चेक करना, बल वेट गिनना, जीभ देखना, दशविध परीक्षा, अष्ट परीक्षा, ये तो आगे के है। किंतु वाग्भट ने क्या कहा है कि क्या देखना चाहिए, वो कह रहे कस्मिन अयम देशे जाता समृद्धो व्याधित, वो जो पर आपके सामने रुग्ण बैठा है वो कौन से देश में जन्मा है, उस व्याधि तक कौन से देश में हुआ है और बड़ा कौन से देश में हुआ है। तस्मिन भूमि देशे, उस देश में, जिस देश में ये जाता समृद्धो व्याधित है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तस्मिन चाहिए, तस्मिन भूमि दे, उस देश में मनुष्य का आहार क्या है, आहार किस प्रकार का है, विहार किस प्रकार का है, उनका बल किस प्रकार का है, सत्व किस प्रकार का है, सात्म्य किस प्रकार का, उस देश में भक्ति किस प्रकार। जैसे अब जो गुजराती लोग होते हैं वो ज्यादा मीठा खाते हैं, उनकी भक्ति है। तो हर एक देश के अनुसार भक्ति बदलती जाती है। इमे व्याध्या, वहां पे प्राय व्याधि कौन से होते हैं, और हितम इदम अहितम इदम। अब यही जो घटक है ये मैंने मेरे केस पेपर में लिए हैं और उसके अनुसार मैं उस व्यक्ति की पूरी दिनचर्या निकालता हूं और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करता हूं। मेरे केस पेपर में यही इतने ही मुद्दे होते हैं। आगे कहते हैं कि दोषस्य एकस्य विभवा प्रकोप हेतवा। आपको इसके अनुसार, इसके बाद में क्या पता चलेगा कि एक ही दोष के प्रकोप के लिए अनेक प्रकार के हेतु उत्पन्न होते हैं। तस्माद यथा स्वलक्षण ही कर्म भी बुधवा, इसलिए अपने लक्षण और कर्म के अनुसार दोषों का पूरा ज्ञान करके क्या करना चाहिए, भिषक दोषम एवं अवगमयेत, पहले दोषों का ही निश्चय करना चाहिए कि इस रुग्ण में दोषों की अवस्था क्या है। तथा तद यथा, वो कैसे करना है, आकिम आहारण कुपितो, अभी वात प्रकोप है लेकिन क्या वो आहार से कुपित है, क्या वो विहार से कुपित है, क्या रुक्ष गुण से प्रकोपित है, क्या लघु गुण से प्रकोपित है, या शीत गुण से प्रकोपित है, साहस से उत्पन्न हुआ है वात प्रकोप, या वेगरोध से हुआ है, या भय से हुआ है, या शोक से हुआ है। इस प्रकार से आपको एक ही वात प्रकोप दिखाई दे रहा है, पर आपको वात प्रकोप किस कारण से हुआ है ये पता करना बहुत महत्व का है। इसलिए आपको उस रुग्ण की दिनचर्या निकालनी पड़ती है और उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, तभी आपको आपके उस व्याधि नष्ट होके व्याधिक क्षमत्व निर्माण हो सकता है। आगे की लाइन और सबसे आखिरी लाइन सबसे ज्यादा महत्व की है। ये जब आप निकालोगे कि वात कौन से प्रकोप से है, पित्त कौन से प्रकोप से है, कौन से गुण से है, श्लेष्मा कौन से गुण से प्रकोपित है, ये सब मिलने के बाद ततः तत्प्रतिपक्षम औषधम प्रयुज्यमानम, जो गुण बड़े हैं उनको नष्ट, उनको क्षय करना है, जिनका क्षय हुआ है उनकी वृद्धि करनी है, ऐसे प्रतिपक्ष औषध करके आशु सिद्धे संपद्यते। कौन कहता है आयुर्वेद को बहुत देर लगती है, हम कहते हैं कि हम आशु सिद्धे संपद्यते, 7 दिन में हम ठीक कर सकते हैं या कुछ ना कुछ तो उनको उपशय जरूर दे सकते हैं, ऐसा वाग्भट कहते हैं। अगर वाग्भट के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप आयुर्वेद का विचार छोड़ दो। तो इसलिए जो दिनचर्या निकालनी है वही हेतु गुण निर्णय है, वो कैसे करना चाहिए। तो ये पहला उसका सूत्र है कि आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान परीक्ष प्रयोजयेत्। जो आहार की विधि विशेषता बताए हैं वही अगर अशुभ अयोग्य प्रकार से हम सेवन करेंगे तो वही हेतु है। हेतु कौन है, हेतु किसको हेतु कहेंगे, जो हम रोज करते हैं वही तो हेतु है ना। हर एक पेशेंट के, जैसे अभी के पहले के स्पीकर ने कहा कि एवरी पेशेंट हैज इंडिविजुअल सिनेरियो, प्रत्येक पेशेंट के अपने अपने अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो हेतु ढूंढना ये बहुत महत्व का है। एक हेतु सभी प्रकार के लिए ऐसा नहीं होता, वो व्यक्ति में क्या विकृति है, वो व्यक्ति क्या गलती करता है, वो ढूंढना। ग्रंथ में जो हेतु दिए होते हैं वो एक मार्गदर्शन के लिए दिए गए होते हैं, वो देखकर व्याधि ढूंढना नहीं चाहिए। अरे इस रुग्ण में तो चरक में इतने हेतु दिए, लेकिन मतलब कुष्ठ के हेतु समझो वर्णन किए और हम चरक के कुष्ठ के हेतु सभी कॉपी पेस्ट करके रखे केस पेपर में, और हमारे सामने कुष्ठ का व्याधि अब पेशेंट आ गया, उसमें एक भी हेतु नहीं मिला हमें, तो क्या कहेंगे, अरे ये तो एक भी हेतु सेवन नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति क्या गलती कर रहा है उसको उस समय हेतु कहा जाता है।
और उसको ठीक करना, यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो उसको कैसे करेंगे? जो अभी देखा हमने वाग्भट का हेतु, वाग्भट का सूत्र, वही चरक में, मूल चरक में जो है वो विमान स्थान के 8वें अध्याय में यही है। इसको रिपीट, अब मैं क्या करता हूं, तो मेरे केस पेपर में ये मैंने ऐसे चार्ट बना के रखा है और उसको 5 कॉलम है। दिनचर्या, मतलब उसकी दिनचर्या पूरी निकालना, उसके बाद हितकर क्या है, अहितकर क्या है, आइदर वो हितकर होगी या फिर अहितकर होगी। फिर उससे दोष क्या है, उससे कौन सा दोष, अगर अहितकर है तो उससे कौन सा दोष विकृत होगा, और उस दोष जो विकृत है उसके वो कौन से गुण से विकृत होगा, इतना विचार करना पड़ता है। मैंने एक उदाहरण दिया है। शुरुआत में हमेशा प्रत्येक रुग्ण में, जो रुग्ण नया आता है उसको मुझे 1 घंटा तो लगता है प्रथम परीक्षण के लिए, क्योंकि बारीक बारीक सा विचार करना पड़ता है। मैं शुरुआत करता हूं, आप कितने बजे उठते हो, तो उत्थान से हमेशा शुरू करना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं 8 बजे उठता हूं, तो वो अहितकर है, क्योंकि दिनचर्या में लिखा गया है ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठ है, ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से समय में उठना चाहिए। अगर वो 8 बजे उठ रहा है तो वो 2 घंटे का दिवा स्वाप कर रहा है, क्योंकि 6 बजे प्राय अराउंड 6 बजे सूर्योदय होता है भारत में। तो अगर 8 बजे वो उठ रहा है तो वो 2 घंटे का दिवा स्वाप नित्य कर रहा है, वो बहुत बड़ा हेतु है। उससे प्राय कफ दोष और उसके बाद पित्त दोष भी विकृत होगा, और उनके गुण स्निग्ध, गुरु और मंद इस प्रकार से हो सकते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि आप जब उठते हो, किसी का माइक चल रहा है, कृपया म्यूट करके रखिए, कि जब आप उठते हो तो तुरंत उठने के बाद आप पानी पीते हो क्या? तो अगर उसने कहा कि हाँ मैं पानी पीता हूं, कितना, फिर पूछने का कितना प्रमाण है, तो वो बोलेगा कि 1 गिलास पानी पीता हूं, तो वो अहितकर है। वो कहेगा एक पूरा बर्तन भर के, पूरा एक कटोरा भर के पानी पीता हूं, तो वो ज्यादा अहितकर है। तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी पीना, सुबह उठने के बाद तुरंत पानी पीना, यह अग्नि विरुद्ध है, दोष विरुद्ध है, कफ विरुद्ध है, अवस्था विरुद्ध है, कोष्ठ विरुद्ध है। इस प्रकार से पूरी दिनचर्या निकालनी। दिनचर्या कैसे निकालनी है, तो सुबह कितने बजे सुबह उठने के बाद क्या करता है, वहां से लेके दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करते हैं। क्योंकि रात को भी लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। रात को 2 बजे उठ के खाना खाने वाले लोग मुझे पता है, रात को 2 बजे उठ के दूध पीने वाले लोग मुझे पता है, रात को 3-3 4-4 बार मल मूत्र को जाने वाले लोग मुझे पता है। तो ये सभी लोग, ये सभी जो हेतु उनके हैं दिनचर्या के, आपको निकालने पड़ते हैं और इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। यही लाइफस्टाइल आयुर्वेद के अनुसार हम मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। अब कुछ घटक मैं और बताता हूं कि जैसे जो जो मैं पूछता हूं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा और मैं क्या पूछता हूं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सबसे महत्व का घटक है वो है, क्या वो जीर्णे अश्नियात करते हैं, मतलब पहला आहार खाने के बाद अगला आहार सेवन करते हैं। ये बहुत महत्व का है, जीर्णे अश्नियात, क्योंकि अजीर्ण में अगर वो खाना खाएंगे तो तीनों दोषों का प्रकोप होता है। ये सूत्र आपके सामने है। इसलिए जीर्णे अश्नियात मतलब पहला आहार पचन होने के बाद, उद्गार, शुद्धि, उत्साह, वेगोत्सर्ग, हेतुजता वगैरह वगैरह निर्माण होने के बाद फिर अगर वो दूसरा आहार सेवन करते हैं तो ही वो प्राकृत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होता है। ये पहचानने के कैसे हम, तो उसके लक्षण भी दिए हैं। विष्टंभ, अजीर्ण के लक्षण क्या क्या है, तो वो इस लक्षण के ऊपर हम समझ सकते हैं कि वो अजीर्ण अवस्था में खाना खा रहे हैं। पहला लक्षण है विष्टंभ। या विष्टंभ मतलब शरीर में जखड़ाहट होती है। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल, वो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गलती, मतलब कुछ गलत हो रहा है ऐसा उसको लगता है, विष्टंभ है। सदन है, सदन 2 प्रकार का होता है, एक शरीर सदन मतलब शारीर सदन हो चुका है, दूसरा मनो अवसादन मतलब डिप्रेशन होता है, वो भी डिप्रेशन इज ऑलवेज साइन ऑफ अजीर्ण। देन शिरोस्वरूख, सभी प्रकार के माइग्रेन, सभी प्रकार के शिरोरुजा, जो कुछ शिरोरुजा है वो अजीर्ण के कारण हो सकती है। मूर्छा, भ्रम, पृष्ठकटिग्रह, पृष्ठकटिग्रह है, जखड़ाहट है पेट में, कटी में, शूल है, और सभी पेन किलर रहने के बाद भी सभी जाके आते हैं सब जगह पे, ऑर्थोपेडिक के पास जाकर आते हैं, सब जगह जाते हैं, पंचकर्म भी करते हैं, बस्ती लेते हैं, फिर भी कटिग्रह पृष्ठग्रह ठीक नहीं होता। आप उसके सिर्फ अवस्थापाक ठीक कर दीजिए, अजीर्ण ठीक कर दीजिए, वो ठीक नहीं होते कि नहीं देखिए। और वो ये दिस इज कॉल्ड एज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये लाइफस्टाइल खराब होने के लक्षण है। ये जृंभा, अंगमर्द, तृष्णा, ज्वर, छर्दी, प्रवाहन, अरोचक, अविपाक, ये सभी अजीर्ण के लक्षण है।
अगर ये आमाजीर्ण अगर पित्त के साथ संसृज्य होता है तो दाह, तृष्णा, मुख रोग, अम्ल पित्त और पित्तज अनेक प्रकार के रोग निर्माण करेगा। यही अजीर्ण या आमाजीर्ण अगर कफ के साथ संग हो उसका होगा तो वो यक्ष्मा, पीनस, मेह आदि निर्माण करेगा। यही आम वायु के साथ संश्लिष्ट होगा तो वातज व्याधि भी उत्पन्न करेगा। देखिए वात व्याधि की ये एक भी ऐसी भी एक संकल्पना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह वात प्रकोप के लिए वृक्षादि गुणों की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो होती है, लेकिन आज के जमाने में आज कौन वृक्ष, लघु, खर, शीत, पुरुष विशुद्ध सेवन करते हैं? कोई नहीं ज्यादा सेवन करता। एक शीत गुण का सेवन करते हैं, एसी में बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, वो छोड़ दीजिए। पर बाकी के वात प्रकोप के हेतु कौन सेवन करते हैं? फिर भी वात व्याधि है तो वो अजीर्ण उत्थ वात व्याधि होती है, आम प्रदोषजन्य वात व्याधि होती है। आज के सारे वात व्याधि ये संतर्पण जन्य या आम प्रदोषजन्य है, उसकी चिकित्सा उनके प्रकार करनी पड़ती है। अब मात्रा का जो विचार है, मैं मात्रा हमेशा हर रुग्ण में पूछता हूं कि आप कैसा, कितने मात्रा में खाना खाते हो, कितने मात्रा में पानी पीते हो, कितने मात्रा में आप कोई भी फल भी खाते हो। मैंने एक बार में एक अनुभव बताता हूं आपको कि एक बार एक रुग्ण मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, चारधाम यात्रा को जा रहा हूँ, केदारनाथ को जा रहा हूँ, तो मुझे क्या पथ्य पालन करना चाहिए। मैं नया शुरुआत की थी प्रैक्टिस में, मुझे पता नहीं था कि किस प्रकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट ही हमारे असली गुरु होते हैं। किस प्रकार से हमें बात करनी चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, ये पेशेंट ही हमें सिखाते हैं। कॉलेज में तो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अपने पैमाने पे मतलब खुद के बलौते पर जब हम पेशेंट देखते हैं, वही हमारी असली एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो पता है कि आप जा रहे हो, ठंडा प्रदेश है, हिमालय है, तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ, अच्छा रहेगा आपको। उन्होंने मेरी सिर्फ यही एक वाक्य ध्यान में रखा। मुझे उनको बताना चाहिए था कि मात्रा में खाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, पहले से ही स्थूल कार्डियक पेशेंट, हार्ट हृदरोग के पेशेंट थे, स्थूल पेशेंट थे, अम्ल पित्त के पेशेंट थे, और वो यहाँ से तो मतलब आज के चारधाम भी बिना किसी कष्ट के ही होते हैं। यहाँ से एयर फ्लाइट से देहरादून तक गए, देहरादून से स्पेशल कार करके वो गौरी कुंड तक गए, और गौरी कुंड से उन्होंने घोड़ा लिया और घोड़े पे बैठ के वो केदारनाथ तक जाने लगे। जैसे वो घोड़े पे बैठे, उन्होंने ड्राई फ्रूट की थैली निकाली और केदारनाथ आते आते वो पूरी की पूरी थैली ड्राई फ्रूट की खत्म कर दी। और उनको वहां पे जाने के बाद इतना बड़े पैमाने पे वॉमिटिंग शुरू हो गई, इतने बड़े पैमाने पे अम्ल पित्त शुरू हो गया कि उनको वहां पे बिना दर्शन किए हेलीकॉप्टर से नीचे उत्तरकाशी तक लाना पड़ा। और वो मुझे ब्लेम करने लगे कि आपने तो बोला था कि ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स लेने जब कितने लेने चाहिए, थैली भर के। तो मात्रा का विचार यह अत्यंत महत्व है। और इसके बाद में मैंने हर पेशेंट में मैं मात्रा बताता हूं और मात्रा पूछता भी हूं, क्योंकि हम यहाँ गलती कर सकते हैं। एक बार पेशेंट ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं, उदाहरण तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आगे का बहुत ज्यादा समय, ज्यादा विषय ज्यादा है, इसलिए मात्रावध ही खाना खाना चाहिए। मात्रा का लक्षण क्या है, वो तीसरी पंक्ति में देखिए, सुखम गुदम अनुपर्यति। अब पेशेंट जो भी खाता है वो सुखकारक, बिना कहीं पर भी किसी प्रकार की विकृति न करता हुआ उसका मल में रूपांतरण होता है। यही योग्य मात्रा का लक्षण है। कि ये लक्षण मात्रा के लक्षण ये चरक में है, आपको पता है, त्रिविध कुक्षी में। इसको ऊपर में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये लक्षण चेक करने चाहिए। अमात्रा में दो प्रकार होते हैं, एक तो हीन मात्रा या अधिक मात्रा। हीन मात्रा मतलब अमात्रा में भी दोनों है, मतलब हीन मात्रा तो अमात्रा है ही, अति मात्रा ये भी अमात्रा है जो योग्य मात्रा नहीं है। और अति मात्रा ये सर्व दोषों का प्रकोप करने वाली है। संतर्पण आज का बहुत बड़ा हेतु है, ये हेतु पूछने ही चाहिए संतर्पण के। अब संतर्पण की व्याख्या क्या है, पहली पंक्ति में दी है, संतर्पयति यहां स्निग्धैहि मधुरैहि गुरु पिच्छिलैहि। जो जो आहार और जो जो विहार ये स्निग्ध गुण का है, जो मधुर गुण का, मधुर मतलब पार्थिव आप्य है, जो गुरु गुण का है, जो पिच्छिल गुण का है, जो शीत गुण का है, जो स्थिर गुण का है, वो सभी संतर्पण करने वाला है। उसमें से कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, नवान्य, नवमध्य, अनुपवारिज मांस, गोरस दूध के सारी विकृतियां, गौड़ी का गुड़ की सभी विकृतियां, पौष्टिक जिस जिसमें पदार्थों में पीठ डाला गया है वो सभी पौष्टिक पदार्थ, चेष्टा द्वेषी, आज हम चेष्टा द्वेष में है। पहले हम टीवी उठ के बंद करना पड़ता था, आज हम रिमोट से बटन बंद करके टीवी बंद करते हैं। पहले गाड़ी को किक लगानी पड़ती थी, आज ऑटो स्टार्ट है।
मतलब जितना चेष्टा कम करनी चाहिए उतनी चेष्टा हमने कम की है। दिवा स्वप्न का अर्थ दिन के खाने के बाद सोना ऐसा नहीं है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, इसको दिवा स्वप्न कहते हैं। तो शैया आसन सुख है, इसमें एक और जोड़ना चाहिए, वाहन सुख है। हम कॉर्नर पे भी जाते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं। पैदल चलना मतलब ये जो गाना है ना, हिंदी गाना, आज कल पाव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये सचमुच हो रहा है कि हमारे पैर जमीन को लगते ही नहीं है। पैदल चलना तो बेहतर हम भूल चुके हैं। इस सभी हेतुओं के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको संतर्पण निमित्त रोग कहते हैं। उनमें पहला है प्रमेह, पीड़का, कोट, कंडू, पांडवामय, ज्वर भी होता है इस प्रकार से। इसके बाद सभी प्रकार के कुष्ठ, आम प्रदोष, मूत्रकृच्छ्र, अरोचक, तंद्रा, क्लैब्य, अतिस्थौल्य, क्लैब्य, नपुंसकत्व, और ये शारीरिक नपुंसकत्व तो है ही, मानसिक क्लैब्य भी इसमें है। अतिस्थौल्य, आलस्य, गुरुगात्रता, इंद्रियों के सभी स्रोतों में लेप उत्पन्न होना, बुद्धिमोह, प्रमीलक, विविध प्रकार के शोफ, ये सभी संतर्पण जन्य व्याधि। अब कुछ बाकी रहेगा तो देख लीजिए इसमें। सात्म्य की कल्पना क्या है हमारी? सात्म्य की कल्पना पहले ही पंक्ति में दी है, सात्म्यम नाम तद यद आत्मनि उपशेते। सात्म्य का अर्थ है जो खुद को हितकर है उसी को सात्म्य कहेंगे। अभ्यास से सात्म्य होना ये अलग बात है, लेकिन अभ्यास से भी जो सात्म्य करना है वो भी हितकर का ही करना है। अहितकर घटकों का अभ्यास से सात्मीकरण नहीं हो सकता। कोई भी अहितकारक हो, इसका कभी भी आप अभ्यास करोगे तो वो आपको सात्म्य नहीं होगा, वो अंतिमतः कुछ ना कुछ विकृतियां निर्माण जरूर करेगा। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तंबाकू खा रहा हूं, 30 साल से तंबाकू खा रहा हूं, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, उनको आप कहना कि आपकी गलत फहमी है, आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ जरूर होगा अगर आप 30 साल से तंबाकू खा रहे हो। कई पेशेंट कहते हैं कि देखो मैं इतने साल से ये हेतु सेवन कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बहुत गलती है। जो अभ्यास से सात्म्य करना है वो भी हितकर का ही करना है, क्योंकि ये कहते हैं देशानाम आमयानाम च विपरीत गुणम गुणैहि। जो देश, जिस देश में आप हो, इसके विपरीत गुण का आहार विहार आपका होना चाहिए। जो व्याधि उत्पन्न हुआ है उसके विपरीत गुण का आहार विहार होना चाहिए। जिस ऋतु में आप हो उसके विपरीत गुण का आपका आहार विहार होना चाहिए। देखिए ऋतुचर्या कैसे निर्माण, ऋतुचर्या ये इम्यून लाइफ स्टाइल में आती है कि नहीं? तो दिनचर्या, ऋतुचर्या कैसे निर्माण हुई है? ऋतुचर्या का अर्थ है ऋतु जिस गुण का है उसके विपरीत आहार विहार करना, ये ऋतुचर्या है। और जो ऋतु के समान गुण का सेवन करता है वो ऋतु विरुद्ध है, या ऋतु में अपत्य। ऋतु में अपत्य क्या है? तो ऋतु जिस गुण का है उसके विपरीत गुण, उसके समान गुण का सेवन करना, उसी को ऋतु में विकृत, ऋतु में विकृति निर्माण करने वाले वो हेतु है। इसलिए साथ में ऋतु साथ में मतलब क्या? तो ऋतु साथ में इसका अर्थ ऋतु जिस गुण का है उसके विपरीत गुण का आहार विहार करना। अब ये नियम सुश्रुत के अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय में 21 स्थान में बताया है। यही सूत्र चरक में सूत्र संघ 7वें अध्याय में है, लेकिन सुश्रुत ने उसको गद्य में लिखा है, चरक ने उसको पद्य में लिखा है। अर्थ एक ही है। हम सुश्रुत का देखेंगे, चरक का प्राय पता होता है सबको, हम सुश्रुत का देखेंगे पहले कि उचितात अपि अहितात। जो उचित है, उचित मतलब उचित का दो अर्थ है। उचित का एक अर्थ है योग्य और उचित का दूसरा अर्थ है अभ्यास। देखिए चरक के नीचे टीका, उचितात की टीका, नीचे से दूसरी लाइन, उचितात इति अभ्यस्तात, जो अभ्यस्त है। तो जो उचित है मतलब जिसका अभ्यास है, किंतु जो अहितकारक है मतलब जो शरीर के लिए अहितकारक है लेकिन उसका अभ्यास हो रहा है, उसको क्रमशः विरमेत, उसका त्याग ही करना चाहिए। जो अहितकारक है उसका सात्मीकरण कभी नहीं करना चाहिए, उसका त्याग ही करना चाहिए। जो अभ्यास है किंतु अहित है, और वो त्याग कैसे करना है? क्रमशः, एकदम से बंद नहीं करना है। टीका में देखिए क्या दिया है, सहसा परिवर्तने रोगो मरणम वा। आप कोई भी हेतु एकदम बंद कर दोगे तो एक तो व्याधि निर्माण हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगा। जो व्यसनों के लिए, सभी प्रकार के जो व्यसन है उनके विड्रॉ सिंड्रोम जो उत्पन्न होते हैं वो इसे ही उत्पन्न होते हैं। और हितम अनुचितम अपि असेवेत क्रमशः। जो हितकारक है किंतु उसका अभ्यास नहीं किया है, मतलब करना चाहिए अभ्यास हितकर का, लेकिन नहीं कर रहा है,
तो उसका भी सेवन ये क्रमशः ही करना चाहिए, एकदम से शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। चरक यही कहते हैं कि उचितात अहितात धीमान क्रमशः विरमेत नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमः च अत्र उपदिश्यते। तो क्रम दिया है चरक ने, वो आपको पता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो अभ्यास से जो अहितकारक है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज स्नान नहीं किया हूं, कल भी नहीं करूंगा, परसों भी नहीं करूंगा, महीना एक मास हो गया स्नान नहीं करूंगा, तो स्नान नहीं करना इसका मुझे साथ में हो गया क्योंकि मैंने अभ्यास किया, तो वो गलत है। स्नान नहीं करने का अभ्यास कभी नहीं हो सकता, सात्म्यकरण नहीं हो सकता, उसके व्याधि उत्पन्न होंगे ही। इसलिए जो अहितकारक है उसका अगर अभ्यास है तो उसका त्याग ही करना है, उसका सात्मीकरण नहीं हो सकता। पादेन अपथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वात्यजे, जो अभ्यस्त है किंतु अपथ्य है उसको पादांशिक, इसमें ये वाग्भट कह रहे हैं, देखो तीनों ग्रंथकार एक ही चीज कह रहे हैं। और आप देखिए अष्टांग हृदय के अन्नरक्षा अध्याय में ये सूत्र है, इसकी टीका देखिए हेमाद्रि की आयुर्वेद रसायन टीका, और उसकी पहली पंक्ति हम देखेंगे क्या कहते हैं, अपथ्यस्य सात्मीकरणम निषेधति, जो अपथ्य है उसका सात्मीकरण नहीं करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान, ये पेशेंट को हमें बताना पड़ेगा। पेशेंट कहते हैं कि जो जो मुझे प्रिय है वो आप बंद कर रहे हो, तो उनको कहना पड़ता है कि जो प्रिय होता है वो हमेशा हित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो हितकारक है वही सेवन करना है, और जो अभ्यस्त जो अभ्यास है पर अहितकारक है उसका त्याग ही करना है। अब कुछ घटक संस्कार से हमें बदलने पड़ते हैं, और हमारा जो मतलब भारतीय आहार पद्धति है वो उसको संस्कारिक करके ही हमने हमारे आहार पद्धति में बैठाया गया है। इसलिए पेशेंट की जो लाइफस्टाइल में या दिनचर्या में आहार है वो भी हमें ढूंढना चाहिए कि किस प्रकार से वो कर रहा है। अब देखिए जो तंडुल है, तंडुल ऐसे वास्तविक जो मिलते हैं उसको अगर हम सेवन करने जाएंगे तो वो हम पचन करने के लिए गुरु है, लेकिन हमें उसको लघु करके सेवन करना पड़ता है। तो लघु कैसे करते तंडुल को, तो सुधौतः, उसको अच्छे से धो लेंगे, प्रसृतः, और उसके पहले दूसरी लाइन है भ्रुष्ट तंडुलम, तंडुल का मतलब तंडुल से राइस बनाने से पहले उनको किंचित भ्रुष्ट भर्जन करके लेना है, उनको थोड़ा सा फ्राई करना है उनको, फिर अच्छे से धो के लेना है, फिर वो पानी निकाल देना चाहिए, फिर स्विन्ना, फिर उसको जहां से वाफ निकल जाती है, कुकर में बनाया हुआ राइस ये गुरु है, जिसमें से वाफ के ऊपर राइस बना जाता है वो गुरु है। तो भात कैसे बनाना चाहिए, भात खुले बर्तन में बनाना चाहिए जिसमें से वो स्पिन हो, लेकिन वो वाफ जो है वो निकल जाए, और संतप्त और गर्म होना ही चाहिए। ठंडा अगर भात खाएंगे तो वो गलत ही है। क्या कहते देखिए वाग्भट क्या कहते देखिए, सुधौता प्रसृतः स्विन्ना अत्यक्तोष्मा च ओदनो लघु। जो भ्रष्ट, नीचे लिखा है भ्रष्ट तंडुला, जो भर्जन किए हुए तंडुल है। भर्जन क्यों करना है भर्जन, क्योंकि तंडुल ये बारिश में उत्पन्न होते हैं, मतलब जल अति जल के काल में उत्पन्न होते हैं, और उसको पानी बहुत लगता है, इसलिए इनमें निसर्गतः जल और पार्थिव महाभूत अधिक मात्रा में है। वो हमारे अग्नि के लिए सुपाच्य नहीं है, इसलिए उनको थोड़े से भर्जन करके उसमें से जो अनावश्यक जल है वो निकाल देना चाहिए, फिर उसको अच्छे से धोकर फिर पानी निकाल कर खुले बर्तन में जिसमें से त्यक्त ऊष्मा निकल जाए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, त्यक्तोष्मा चाहिए एक्चुअली, अत्यक्तोष्मा ये गलत है, और औदनो ऐसा भात ये लघु है। इसके विपरीत जो भात है कुकर में बनाया हुआ जो भात है वो गुरु है। अब जो अपूप मतलब जो रोटी वड़ा पूरी वगैरह जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, तो कुकुल करपर भ्राष्ट्र कंदु अंगार विपाचितान एक योनिम लघुन विद्यात अपूपान उत्तरोत्तरम। तो सबसे हल्का ये अंगारों पे ऊपर भाजा, मतलब जिसको हम आज क्या कहते हैं अंगारों पे तंदूर जो है वो कंदू है। तो उसको ये अनेक प्रकार के रोटी बनाने के प्रकार है। तो कुकुल क्या है, कुकुल का एक अर्थ अपाम बाष्प, टीका देखिए नीचे सर्वांग सुंदर में, अपाम बाष्प स्वेदा मतलब पानी के ऊपर, पानी के वाफ के ऊपर बनाना, इसको कुकर मतलब कुकर ही, जिसको आज कुकर कहते हैं। तो उसमें अगर आप किसी प्रकार का जो अगर रोटी या वड़ा या पूरी बनाएंगे तो सबसे गुरु बनेगी। हमारे महाराष्ट्र में जो अभी जो दीपा अमावस्या हो गई
उस दीप अमावस्या, गताहारी अमावस्या जिसको कहते हैं, गताहारी, उसमें हम दिंड नाम का एक पदार्थ बनाते हैं जिसमें पूरण होता है, मतलब चणक का पूरण होता है, और जो रोटी का जो हमारा आटा होता है उसको इकट्ठा करके ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े बनाते हैं और उसको घी के साथ खाते हैं। तो ये कुकर में ही बनाते हैं, आज के जो कुकर में बनाते हैं उसको उबालते हैं, तो ये सबसे गुरु होते हैं। अब ये जो मंडपेय विलेपी है, ये ओदन की लघु कल्पना है, उसमें यथा पूर्वम शिवाः, तो उनके गुण है। तो ये जहां पे लघु गुण की आवश्यकता है तो पेशेंट ये लेता है क्या? मैं आपको एक उदाहरण बता दूं पेशेंट का। एक बार धर्माधिकारी सर के साथ में था और एक रुग्ण आई, और उस रुग्ण के हाथों के 10 उंगलियों में और पैर के 10 उंगलियों में एब्सेस थे। एक एब्सेस उत्पन्न होता था, वो फूट के उसमें से पानी निकल जाता था, थोड़े दिन के बाद फिर से एब्सेस उत्पन्न होता था। अब उसे सभी चिकित्सा की, आयुर्वेद की चिकित्सा भी चल रही थी, ज्यादा उपशय नहीं था। तो सर के पास वो लेके आए, वो वैद्य थे, वो सर के पास लेके आए कि आप एक बार देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर ने सभी उनकी हिस्ट्री पूछी और पूछा कि आप कहाँ रहती हो? उन्होंने कहा मैं वसई में रहती हूँ, महाराष्ट्र में वसई नाम का जो कोकण का प्रदेश है वहां पे रहती हूँ। तो जैसे ही कोकण का नाम सुना, सर ने उनको 2 प्रश्न पूछे। क्या आप तंडुल की पेया पीती हो, मतलब जिसको मराठी में पेज कहते हैं हम, वो आप पीते हो? हाँ, मैं गरीब हूँ, मुझे ज्यादा बाकी का आहार तो मतलब दही दूध ये तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैं राइस का जो ऊपर का पानी होता है, पेस्ट बना के करते हैं, पेया बना के, वो मैं रोज कटोरा कटोरा भर के पीती हूँ। चलो एक हेतु मिल गया, क्योंकि पेया ये अभिष्टंदी है, कफज अवस्था में पेया नहीं देनी है। दूसरा, सर ने पूछा क्या आपके घर के पास नारियल के पेड़ है? उसने कहा हाँ, मेरी तो खेती है नारियल के पेड़ की, मेरे घर के पास है मेरे सभी। आप कितना पीती हो? उसने कहा मैं रोज 1 नारियल का पानी पीती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है। और फिर पानी पीने के बाद सर ने पूछा कि क्या उसमें से जो स्नेह निकलता है वो आप खाते हो? हाँ हाँ, वो भी खाती हूँ। सर ने कहा ये 3 हेतु इसके हैं, ये उसका तंडुल की पेया बंद कर दो, ये नारियल पानी बंद कर दो, और ये स्नेह निकल के खाती है वो भी बंद कर दो, जो उसको जो खोबरा कहते हैं मराठी में, जो निकल के खाते हैं वो खाना बंद कर दीजिए। और उसको कुछ डाइट बना दिया कि डाइट क्या करना, क्या खाना है। तो लाजा बंड करके लाजा करने के लिए कहा गया, कुछ और जो रुक्षादि गुण से है ऐसे कुछ पदार्थ बताए गए। ये इसी को कहते हैं लाइफ मॉडिफिकेशन। मतलब वो क्या गलत कर रही थी उनके लाइफ में, मतलब उसको एक्सेस होने के लिए हम ग्रंथ के हेतु ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो रुग्ण कहाँ रहती है, कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वो ढूंढना ही इसी को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से गोधूम का भी संस्कारात लघु होता है, ये इसका संदर्भ है। दाना परपट करना, ये इसका संदर्भ है। नवम धान्यम अभिसंधि लघु संवत्सरो उषितम, जो धान्य निर्माण हुआ है अभी अभी वो अभिसंधि होता है, इसलिए वो सेवन नहीं करना है। जो 1 साल पुराना है वही सेवन करना है। आज हमें पता ही नहीं होता कि धान्य हम कहाँ से लाते हैं, दुकान से लाते हैं, दुकान में वो कब आया है पता ही नहीं होता, कितना पुराना है पता नहीं, इसलिए व्याधि बढ़ गए हैं। और अभी अगली जो कंसेप्ट है वो अग्नि, आम और आम प्रदोष की है। संक्षेप में बताऊंगा, सूत्र सभी आपको पता है कि अग्नि का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोषों का जो श्रम प्रकोप है वो अग्नि के ही ऊपर अवलंबित है। इसलिए हेतु को वर्ज करके अग्नि की हमेशा रक्षण करनी चाहिए। देखिए, आहार रस के कारण ही स्थौल्य और कारश्य है। जो व्यक्ति शेषमल आहार सेवन करता है, अध्यशन करता है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करता, दिन में सोता है, उसका शरीर का अन्न रस, जो आहार रस है अवस्था पाक के बाद उत्पन्न होने वाला, वो आम ही उत्पन्न होगा और मधुरतर मतलब पार्थिव आप्य ही उत्पन्न होगा। इससे व्याधि कौन से होंगे? तो प्रमेह, पीड़का, ज्वर, भगंदर, विद्रदी, वात विकार अपी। देखिए, वात विकार भी इसी कारण हो सकते हैं। आज की सभी वात विकार इस प्रकार से है। ये संदर्भ सुश्रुत का है। आम की कल्पना, आम की व्याख्या आपको तो कॉमन पता है, उष्णमणो अल्प बलत्व धातु माध्यम पाचतम। लेकिन ये 2 संदर्भ, ये राजा भोज का और ईश्वर सेन जो टीकाकार है सुश्रुत के, उनकी टीका व्याख्या के डल्लन दिए हुए है। ये आम की व्याख्या है, ये नोट करके रखिए। अर्थ वही है, लेकिन ये सूत्र कम मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं। अब ये सूत्र जो है, इसकी अंतिम पंक्ति देखेंगे चरक की, कि तत्र अग्नि ही हेतु आहारात नहीं अपक्वाद रसादया। इसका अन्वय क्या है? अपक्वात आहारात रसादया न भवंती। अगर अपक्व आहार होगा, जिसका अवस्थापाक ठीक से नहीं हुआ है, अग्नि की विकृति के कारण अवस्थापाक विकृत हुआ है, ऐसे अपक्व आहार से धातुओं की निर्मिति उत्तम मात्रा में नहीं होती,
धातु साम्य ठीक नहीं हो उत्पन्न नहीं होता, और यही व्याधि निर्माण करने वाला बहुत बड़ा हेतु है। इसलिए आहार कैसे होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। जो हमने रसायन की कल्पना देखी कि विधिविध अशुद्धम पीतम कैसा होना चाहिए? कालवद होना चाहिए, उत्तम परिपक्व होना चाहिए। अब ये एक संदर्भ सुश्रुत का है, सूत्र संघ के 46 चैप्टर में। यहाँ पे अग्नि वह स्रोतस का संदर्भ है। क्या कह रहे हैं? स्वल्पम यदा दोष विबद्धम आमम लीनम न तेजपथम आवृणोति भवती अजीर्णेपि तदा बुभुक्षा या मंदबुद्धि विषवत निहंती। मतलब जो स्वल्प मात्रा में दोष विकृत होकर शरीर में अग्नि वह स्रोतस में लीन होकर पड़े हैं, उसको अजीर्ण में बुभुक्षा लगती है। ये पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब यहाँ पे टीका देखिए, ऊपर से 5वीं लाइन, तेज पथम इति जठर अनल मार्गम, मतलब अग्नि वह स्रोतस। इसकी कल्पना हमें, विचार हमें करना पड़ता है। ये अग्नि विकृति के हेतु, अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। यही सभी पूछने पड़ते हैं कि अभोजन, जैसे अभोजन के ऊपर मैं बोलूंगा। आज उपवास का ज्यादा स्तोम हो चुका है सभी धर्मों में। मतलब रोजा भी करते हैं तो रोजा वो अत्यंतिक, मतलब उसको एक्सटेंसिव, वो क्या कहते हैं, ज्यादा गंभीर स्वरूप में करते हैं। उसके कारण रोजा के बाद आपके पास अगर पेशेंट पेट के दर्द के, अतिसार के, अम्ल पित्त के रुग्ण बढ़ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अभी जो चातुर्मास शुरू हुआ है उसमें भी जो लोग अति मात्रा में उपवास करते हैं, इनमें भी इस प्रकार के पेशेंट बाद में उत्पन्न होते हैं। इसलिए अभोजन ये बहुत बड़ा हेतु है अग्नि विकृति का, क्योंकि अग्नि को जलन करने के लिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए आहुति तो डालनी पड़ती है। इसलिए कभी भी नित्य उपवास नहीं करना चाहिए। बाकी के हेतु सभी आपको पता है। देश काल ऋतु वैषम्य का विचार हमने अभी किया। इससे क्या होता है? अग्नि दुष्ट, अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। दुष्टति अग्नि, देखिए अग्नि दुष्ट होता है ऐसा कह रहे हैं। स दुष्टो अन्नम न तत् पचति लघु अपि, ऐसा दुष्ट हुआ अग्नि लघु आहार भी पचन करने में सक्षम नहीं है, तो गुरु आहार तो पचन करने में असंभव है। ऐसा अपच्यमानम, मतलब बिना पचा हुआ आहार, उसको कुछ काल के बाद शुक्तत्व आता है और फिर उसको हम आम विष कहते हैं। तो फिर ये लक्षण आगे के हैं, वो रुग्णों को पूछने चाहिए कि प्रसृष्टे विन्मूत्र दुस्स विमल दोषे, ये कौन से काल में ये भोजन करना चाहिए, उसके लक्षण है। ये आपको पता है, नहीं पता होंगे तो कंठस्थ करके रखिए, अष्टांग हृदय के मात्राशीति अध्याय में है। ये बहुत बड़ा महत्व का नियम है। प्रातराशे अजीर्णेपि सायं आशोनुदुष्यते, सुबह खाया हुआ आहार सायंकाल तक अगर अजीर्ण में है और आपने अगर कुछ थोड़ा सा खा लिया तो ज्यादा दोष नहीं है, किंतु अजीर्णे सायमाशेतु प्रातराशो ही दुष्यति। अगर सायंकाल का आहार दूसरे दिन सुबह तक अगर अजीर्ण में है और आप थोड़ा सा भी खाना खा लेते हो तो वो ज्यादा मात्रा में दुष्ट करने वाला है। इसलिए सुबह उठने, देखिए वाग्भट अष्टांग संग्रह का सूत्र क्या है? ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्ण अजीर्ण निरूपयन। पहले उठने के बाद ये सोचना है कि कल का आहार पचा है। कृपया माइक म्यूट करके रखिए, ज्यादा समय में थोड़े देर समय रह गए। किसी का माइक चल रहा है, कृपया म्यूट करके रखिए। तो सुबह उठने के बाद कल सायंकाल का जो आहार है उसका पचन हुआ है नहीं, ये विचार पहले होना चाहिए। उसके लक्षण हमने देखे, अजीर्ण के लक्षण हमने अभी पहले देखे। पहली पंक्ति देखेंगे हम इस सूत्र की, न अभोजने न कायेन दीप्यते न अति भोजना। कम मात्रा में खाने से अग्निदीप्त नहीं होता और अति मात्रा में खाने से भी अग्निदीप्त नहीं होता। इसलिए योग्य मात्रा में सम्यक प्रयुक्त विशेषा बलम अग्नि प्रवर्तते, योग्य मात्रा में अग्नि आहार खाना है। कई लोगों को विशेषतः स्थौल्य में जो लोग हैं उनको लगता है कि मैं कम खाऊंगा तो मेरा अग्नि बढ़ जाएगा और मेरा मेद का पचन हो जाएगा। ये गलत कल्पना है। अभोजन से भी अग्निदीप्त नहीं होता, वो मन विकृत हो जाता है। क्या अग्नि विकृति के कुछ हेतु है? अग्नि विकृति कई प्रकार से हो सकती है, उसकी चिकित्सा भी अलग अलग प्रकार की है। अति स्नेह से अग्निमंद हो गया तो चिकित्सा चूर्ण अरिष्टासव है। गुदोपलेप से अग्निमंद हो गया तो तैला सुरासव चिकित्सा है। उदावर्त से अग्निमंद हो गया तो निरुह स्नेह बस्ती है। दोष वृद्धि से अग्निमंद हो गया तो शोधन करना है। व्याधि से अग्निमंद हो गया तो सर्पी घृतपान अवस्था पर देखकर करना है। उपवास से अग्निमंद है तो घृत युक्त यवागु देनी है। इस प्रकार से अग्नि विकृति जिस कारण से है उसके अनुसार चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। ये हेतु ढूंढने पड़ते हैं, दिनचर्या में क्या क्या हेतु चल रहे हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। मानस भाव के बारे में देखेंगे। ये वेदना का अर्थ है कि वेदना, इसका अर्थ फीलिंग्स,
उसकी फीलिंग्स क्या है। तो सत्वता परीक्षित, ये दशविध परीक्षा भाव में से एक भाव है, उसमें हमें क्या देखना है। तो देखिए इसमें भी धातु साम्य का ही विचार उन्होंने किया है कि जो मानस अवस्था है उसका परीक्षण इस प्रकार से करना है, उसका वो अभी मेरा विषय नहीं है, लेकिन मनोविकृति से भी शरीर विकृति होती है। देखिए यहाँ पे ये बहुदोष के लक्षण है और इसमें एक लक्षण है अवसादकाः, तीसरे पंक्ति में, और उसकी टीका देखिए नीचे, अवसादकाः इति मनो अवसादः। मनो अवसाद मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन ये बहुदोष लक्षण है, उसकी चिकित्सा क्या करनी है, बहुदोषस्य लिंगानी तस्मै संशोधन हितम, शोधन, यही चिकित्सा डिप्रेशन की है। तो मानसिक अवस्था ये भी पेशेंट की देखनी पड़ती है, ये लाइफस्टाइल में बहुत महत्व की है। ये धारणीय वेग है, लोभ शोक भय क्रोध, अगर ये ढूंढने पड़ते हैं पेशेंट क्या करता है, पेशेंट से बात करनी पड़ती है, पेशेंट को कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से। और जो फैमिली फिजिशियन नाम की जो कल्पना थी वो आज अत्यंत महत्व की है। एक फैमिली का एक डॉक्टर होना ये बहुत महत्व का होता है। इससे कारण अभी मेरे पिताजी की प्रैक्टिस वैसी ही थी, मेरी भी ऐसी है कि उस फैमिली के सभी चीजें हमें पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर के परस्पर के रिलेशंस क्या है, किसका स्वभाव किस प्रकार से है, ये सभी पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो चिकित्सा मानस की क्या, ये सूत्र आपको सबको पता है। चिकित्सा क्या है कि आपको पेशेंट को उत्तम प्रकार से चेक करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, उसको चिकित्सा करनी ही पड़ती है। इस नहीं तो मानसिक हेतु छोड़ दिएंगे तो वो बाकी कितने भी आप हिता करो वो कुछ नहीं फायदा होता। यहाँ पे इंद्रियोपक्रमणी अध्याय है और ये सद्वृत्त का वर्णन शुरू हुआ है। और प्रथम पंक्ति में देखिए, प्रथम पंक्ति में सद्वृत्त के दो लाभ बताए। ये पहला लाभ है आरोग्य और इंद्रिय विजय। सद्वृत्त किस लिए करना है, आरोग्य प्राप्ति के लिए करना है और इंद्रिय विजय के लिए। इसलिए सद्वृत्त ये एक प्रकार का दिनचर्या का भाग ही है, वो नित्य करना। इसलिए वाग्भट ने सद्वृत्त का वर्णन दिनचर्या अध्याय में किया है क्योंकि वो रोज करने की बात है। सद्वृत्त का चरक सुश्रुत में जो संदर्भ है वो है, हमने सद्वृत्त थोड़ा सा बताया, मुखमात्रम बताया। किस लिए बताया है, आरोग्यम, आयु अर्थ है, आयु प्राप्ति के लिए और आरोग्य प्राप्ति के लिए बताया है। यही सद्वृत्त का हेतु है। मनोविघात की चिकित्सा ये वर्णन की है छर्दी चिकित्सा अध्याय में, ये एक बार बाद में देख लीजिए। इसलिए मनोविघात का ढूंढना, मनोविघात के हेतु ढूंढना ये भी बहुत महत्व का है। इंद्रियोपघात का भी विचार करना पड़ता है। और जब दोष इंद्रियों के सोकस में जाके बैठते हैं, वहां पे स्थान संश्रय करते हैं, तब एक तो उनका संपूर्ण विनाश करते हैं या किंचित वैकल्य करते हैं, ये ढूंढना पड़ता है, दिनचर्या से ही पता चलता है। अब जो गर्भज भाव है ये थोड़ा सा विषय बड़ा है, उसका अभी विस्तार में नहीं करूंगा, लेकिन गर्भ धारणा के पहले ही हम अगर कुछ घटकों का पालन करेंगे तो उत्तम गुणयुक्त, उत्तम वैदिक क्षमत्व से गुण शरीर ऐसा निर्माण आगे अपत्य में निर्माण हो सकता है। इसलिए माता पितृ संभव, आहारज और आत्मज। अब आत्मज भाव के ऊपर हमारा तो कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो पिछले जन्म के बाद आ रहा है, वो दूसरे किसी जगह से आ रहा है, वो आगंतु है। लेकिन हमारे पास जो माता और पिता है उनको ठीक करना तो हमारे हाथ में है। इसलिए गर्भधारणा करने से पहले माता और पिता के शरीर के सभी महाभूतों की विकृति दूर करनी अत्यंत महत्व की है। और आहारज मतलब माता जो आहार सेवन करती है उससे भी कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है, इसलिए वो भी ठीक से सेवन करना। ये अवयव की निर्मिति के का समय है। मातृज शोणित में जो 5 महाभूत है, 4 महाभूत है क्योंकि आकाश विभु है, शुक्र, ये विषय बहुत विस्तार का है, इसके मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप बाद में देख सकते हैं। पितृ शुक्र में 4 महाभूत है और जो देहांतर गति करके आया हुआ जो जीव है उसके आत्मज भाव में 4 महाभूत है। इनका परमिनेशन कॉम्बिनेशन होके नया शरीर निर्माण होता है। निद्रा का हेतु ढूंढना पड़ता है। निद्रा ये अत्यंत महत्व का हेतु है। निद्रा ये दोषों के कारण ही होता है। और दिवा स्वप्न, इसमें इंद्रियों का असामर्थ्य उत्पन्न हो दिवा स्वप्न से, इसलिए इसके हेतु ढूंढना ये अत्यंत महत्व का है। दिवा स्वप्न किसने करना चाहिए, इसकी ये लिस्ट है। इसलिए आपके सामने अगर ये पेशेंट है तो इनको बताओ कि दिवा स्वप्न करो। दिवा स्वप्न मतलब पूरा दिन भर सोना ऐसा नहीं है, किंचित काल तक सोना है। और इन्हीं लोगों के लिए बताए जो गीत अध्ययन मध्य स्त्री कर्म भार अध्वकर्षित है, अजीर्णी क्षत क्षीण वृद्ध बाल अबल है, तृष्णा अतिसार शूल श्वास हिक्का कृश पतित अभिहत। अब यहाँ पे अजीर्ण को दिवा स्वप्न क्यों बताया है, तो ये
जो रसशेषाजीर्ण है, रसशेषाजीर्ण, इसके लिए ही बताया है। जो विदग्धाजीर्ण है, जो आमाजीर्ण है, जो विष्टब्धजीर्ण है, उनको दिवास्वप नहीं करना चाहिए। अब दिवास्वप्न किसने वर्ज करना है, इसकी लिस्ट दी है, इसके लिए भी लिस्ट उसी के सामने है, वो देख लीजिए। इन सभी लोगों ने दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में मतलब सूर्योदय के बाद भी नहीं सोना चाहिए। ये बहुत महत्व की, इसके हेतु ढूंढना पड़ता है। व्यायाम, ये एक प्रकार की दिनचर्या का महत्व का भाग है। ये लाघव करता है, कर्म, सब सूत्र पता है हमें। आज के लिए दो जो विषय है वो दोषक्षय करता है। व्यायाम में दोषक्षय करता है और अग्नि वृद्धि करता है। अगर कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा तो क्या होगा, दोष विकृत होंगे और अग्नि की विकृति होगी। स्रोतसों के विमान अध्याय में ये सूत्र बहुत महत्व का है। अति प्रवृत्ति संगो वा सीराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापी स्वतसाम दुष्ट लक्षण। अब यहाँ पे ढूंढना कैसे है, तो अति प्रवृत्ति से विमार्गमन, संग के कारण विमार्गमन और सिरा ग्रंथियों के कारण विमार्गमन। अति प्रवृत्ति मतलब समझो एक रास्ता है और ट्रैफिक एकदम बढ़ गया रास्ते पे, तो क्या होता है, हमें ट्रैफिक के कारण चोकअप हो गया तो हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। ये अति प्रवृत्ति से होने वाला विमार्गमन है। संग के कारण विमार, एक गाड़ी बंद पड़ गई रास्ते में, ट्रैफिक कम है लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई है, बड़ी सी बस एक रास्ते बंद पड़ गई तो रास्ता बंद हो जाता है, हमें रास्ता बदलना पड़ता है, संग के कारण विमार्गमन। और सीराणाम ग्रंथि, ग्रंथि मतलब शोथ, स्रोतों में किसी प्रकार का शोथ आ गया, समझो एक कोई रास्ता है और बीच में कुछ गिर गया या बीच रास्ता बंद हो गया तो फिर विमार्गमन होता है। ये शरीर में जब होता है ये स्रोतस दुष्टि लक्षण है। जनपदोध्वंस में मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, एक ही बताऊंगा कि एक ही काल में अलग अलग प्रकार के प्रकृति, आहार, देह, बल, सात्म्य, सत्व, वय, ऐसे मनुष्यों का एक ही हेतु के कारण मृत्यु होती है। इसको जनपदोध्वंस कहा जाता है। एक हेतु जनपदोध्वंस का वायु, उदक, देश काल की विकृति है, लेकिन केवल उसी से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। शस्त्र प्रभाव भी जनपदोध्वंस है। युद्ध के समय में भी, जैसा अभी यहाँ पे साइबेरिया में, सीरिया में चल रहा है या अफगानिस्तान में चल रहा है, तो ये शस्त्र प्रभाव है, जनपदोध्वंस है। उसके बाद में रक्षोगणादि भी, जो कोरोना है ये रक्षोगणादि भी संभव जनपदोध्वंस है। यहाँ पे काल, वायु, जल, उदक, इसका कुछ विकृति नहीं है। ये रक्षोगण मतलब सूक्ष्म विविध भूत मतलब सूक्ष्म जंतु, इसका भी विचार करना पड़ता है। इससे कारण जनपदोध्वंस होता है। अभिशाप से भी जनपदोध्वंस होता है। कोई बताएगा मुझे अभिशाप से जनपदोध्वंस होता है, इसका हेतु, इसका एक उदाहरण बताएगा कोई? किसी ने शाप दिया और पूरा का पूरा एक समाज नष्ट हो गया, ऐसा कोई हेतु बताएगा, कोई उदाहरण बताएगा? किसी को पता है? गांधारी ने दिया था कृष्ण के यस कुल का विनाश करने के लिए। मेरे हमेशा लेक्चर में ये उदाहरण बताता हूं क्योंकि ये पता होना चाहिए। गांधारी ने शाप दिया था कृष्ण को कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे तेरे कुल का भी नाश हो जाएगा। तो अभिशाप से भी जनपद उध्वंस होता है, इसका विचार ग्रंथकारों ने किया है और ये हमें ढूंढने पड़ते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या है, ये चिकित्सा आपके सामने है, बाद में देख लीजिए। जनपद उध्वंस की तीसरे अध्याय में है। इसमें गुप्ती आत्मना 15 नंबर के सूत्र में देखिए, प्रशमो गुप्ती आत्मन मतलब क्वारंटाइन करना, यह बहुत महत्व का है। ये चिकित्सा इसको लोगों को बतानी पड़ती है। आज के कोरोना के काल में यही चिकित्सा है। एक सूत्र है कि सूक्ष्म प्राणी के कारण भी शरीर में, जब सूक्ष्म प्राणी प्रवेश करता है तो उसके कारण शरीर में ऊष्मा बढ़ता है। चक्रपाणी का काल 11वीं शताब्दी है, उसके काल में एलोपैथी का कुछ भी नामो निशान नहीं था। फिर भी चक्रपाणी अपने टीका में कह रहा है, चौथी लाइन में, ज्वरहा त्रिपाद त्रिशिरा इत्यादि युक्त प्राणी विशेष नेयः, जो त्रिपाद त्रिशिरा ऐसा सूक्ष्म कोई प्राणी विशेष है वो अगर शरीर में प्रवेश करता है तो ज्वर का ऊष्मा, शरीर का ऊष्मा बढ़ता है। ये उनको पता था, ये भी ढूंढने पड़ते हैं हेतु। तो ऋतुकालीन विचार करना पड़ता है, ये शोधन का सूत्र है कि ऋतुकालीन शोधन हमेशा नित्य करना पड़ता है। जो नित्य नहीं करता ऋतु का शोधन, उसमें ऋतुद्भव व्याधि उत्पन्न होते हैं, ऋतुज रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए अंतिमतः चिकित्सा क्या है? त्यागा प्रज्ञापराध, सभी प्रज्ञापराध का त्याग करना, इंद्रियों का उपशमन, जो योग्य विषय है उनका ही सेवन करना,
स्मृति रखना कि मुझे ये पदार्थ खाने से प्रॉब्लम हुआ था, ये नहीं सेवन करना चाहिए, मुझे ये स्मृति में होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। देश काल आत्मविज्ञानम, देश में कौन से देश में हूँ, मैं कौन से काल में हूँ, मेरा वय कौन सा है, मैं कौन से ऋतु में हूँ, मेरा शरीर कैसा है, मेरी अग्नि की अवस्था क्या है, मेरे दोषों की अवस्था क्या है, इसको आत्मविज्ञान कहते हैं। और सद्वृत्त से अनुवर्तन, सद्वृत्त का पालन करना, ये आगंतु व्याधियों का, व्याधि न होने का मतलब जो व्याधि उत्पन्न होने वाले हैं इनकी प्रिवेंशन है ये। यही सूत्र चरक में है, या बाद में देख लीजिए। इसलिए नित्य हिताहार विहार करने वाला, समीक्षकारी मतलब सभी घटना, सभी विषय, सभी आहार विहार सोच समझ के करने वाला, विषयेषु असक्तः, किसी भी अयुक्त या अहितकारक विषय में जो असक्त है, दाता, समः, सत्यपरः, क्षमावान, आप्तोपसेवी, जो ग्रंथकारों ने जो बताया उसको फॉलो करता है, उसको किसी प्रकार के रोग नहीं होते। अब दाता क्यों बताया है? कई दैव व्यपाश्रय व्याधि जो है वो उत्पन्न होते हैं, कर्मज व्याधि होते हैं, वो दान करने से चले जाते हैं। इसलिए आपको उपाय बताए होंगे कि कोई व्याधि उत्पन्न हो गया तो आप कंबल दान कर दो, धान्य दान कर दो, द्रव्य दान कर दो, ये ऐसा बताया जाता है, हमारे चरक में भी वर्णन है। इसलिए अंतिमतः एक ही बात ध्यान में रखिए, दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणां एक कारणम, दोषों की विकृति से ही सभी प्रकार के व्याधि होते हैं। इसलिए दोष विकृत ना हो ऐसी दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मेरे कुछ विचार शायद गलत हो, शायद कुछ हो, रखने का मौका मुझे यहाँ पे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपताज आयुर्वेद को सभी जो कार्य करता है उनको मैं मन से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। ये कार्य हमेशा आगे चलाते रहिए। फिर से एक बार सबको वंदन करके मेरा व्याख्यान यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर कुछ प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हो, मैं मेरे अल्पमति से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मैंने दिनचर्या पूरी सिखाई नहीं आपको। यस सर। चरक में वो अवेलेबल है आपको, वाग्भट में क्या है, चरक में क्या है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बताने का मैंने प्रयास किया है। आई होप मैं जो आपका उद्देश्य था उसको पूरा करने में मैं सक्षम हुआ हूँ। धन्यवाद। Yes sir. Yes sir. So there is one question sir. How you are assessing Agni in patients? ओके, उसके लिए चरक संहिता विमान स्थान का 6ठा अध्याय जो है रोगानिक विमानम, उसका 12 नंबर का जो श्लोक है वो आपको देखना पड़ेगा, वो बाद में देख लीजिए। उसमें अग्नि के क्राइटेरिया बताए गए हैं कि जो मैं क्राइटेरिया था संक्षेप में बता, सूत्र नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बताता हूं कि जो 4 प्रकार के अग्नि है, शारीर अग्नि, वो चारों प्राकृत है। विकृत अग्नि ऐसा तो अलग बात है, लेकिन सम, विषम, तीक्ष्ण और मंद ये सभी अग्नि प्राकृत है। अब जब हम अग्नि को असेस करेंगे तो उनको हेतु से देखना पड़ता है। जैसे कोई भी हेतु सेवन करने के बाद अगर अग्नि विकृत होता है तो वो समाग्नि है। जब तक हेतु नहीं है तब तक अग्नि प्राकृत है, और जैसे ही कोई हेतु सेवन होता है, अग्नि विकृत होता है, उसको समाग्नि कहते हैं। जो कोई भी हेतु सेवन सहन कर सकता है, ऐसा भी खाओ, कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, तो वो तीक्ष्ण अग्नि है। जो छोटा सा भी हेतु नहीं है फिर भी जो विकृत होता रहता है वो मंदाग्नि है। अग्नि मांद्य इज डिफरेंट एंड मंदाग्नि इज डिफरेंट। और जो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हेतु हो या ना हो, वो कभी विकृत रहेगा, कभी विकृत नहीं रहेगा, इसको विषमाग्नि कहते हैं। दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ अग्नि। इट इज डिस्क्राइब इन चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर नंबर 6 सूत्र नंबर 12। आप बाद में देख लीजिए। अब ढूंढना कैसे है? अब जैसे मैंने आपको ये मेरे बताया कि मेरे केस पेपर क्या है कि पहले दिनचर्या पूरी लिख लो कि सुबह उठने के बाद दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करते हैं, उसमें से हितकर क्या है, अहितकर क्या है। अहितकर ढूंढो, उससे अग्नि दृष्टि के हेतु मिलते ही आपको। Yes sir. So next question from Dr. Deepika Dongre. अकाल निद्रा कैसे अफेक्ट करती है? अकाल का अर्थ क्या है कि अभी निद्रा का वेग नहीं आया है, फिर भी आप सोने की कोशिश कर रहे हो। और कब दूसरा, निद्रा का वेग आके गया है, आप सोए नहीं हो, आपने जागरण किया और बाद में आप
सोने का प्रयास कर रहे हो, दोनों को अकाल कहेंगे। इससे आपके शरीर के दोष और अग्नि विकृत होने वाले हैं। इसलिए निद्रा ये वेग है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये वेग है, ये इट्स अ नेचुरल अर्ज। वो जब आएगी तब सोना है। आप क्या करते हो, 11 बजे नींद आ रही है तो आज इंडियन आइडल का अंतिम समझो, आज क्या फाइनल है, तो 12 बजे तक आप निद्रा 10 बजे आएगी, आपको नींद आ रही है, लेकिन आपको कौन जीतने वाला है देखने के लिए 12 बजे तक आप जागते रहोगे, तो कल सुबह आपको कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ होगी, क्योंकि आपने वेग का अवरोध किया है। Yes, sir. So next question from Tejali Rohidas. How we get to know about Rasashesha Ajirna? रसशेष अजीर्ण, रस का अर्थ यहां आहार रस है। जब आहार रस का पूरा परिणमन नहीं होता है, कुछ अवशिष्ट रहता है, आंश लग रहता है, उसको रसशेषाजीर्ण कहते हैं। अब इसमें आपको लक्षण क्या है कि खाने के बाद शरीर गौरव, खाने के बाद शिरोशूल, खाने के बाद मतलब खाने के बाद पचन जब होता है अवस्था पाक के समय में, ये शिरोशूल आदि, अम्ल पित्त आदि, छर्दी आदि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे, तो रसशेषाजीर्ण है, समझ लीजिए। उसको क्या करना है, सोना है। सोना सोने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि उसमें रुग्ण जो है वो खाएगा नहीं कुछ। Yes, sir. और उसको आहार के परिणमन के लिए समय मिलेगा। Yes, sir. So next question from Shri. Can you please explain how Ajirna during daytime and Ajirna because of evening food, and if food is taken then it causes more ama? Pardon please, क्या? Can you please explain how Ajirna during daytime and Ajirna because of evening food, and if food is taken then it causes more ama? क्या ये more ama produce करेगा, ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है। देखिए, दिन में जो आप अजीर्ण होता है वो आराम से पचन हो सकता है, क्योंकि दिन में सूर्य शक्ति है। चरक ने ये बताया, सूत्र पढ़िए आप, ग्रहणी चिकित्सा, जो मैंने सूत्र बताया उसी के आगे के सूत्र है कि शरीर का चेष्टा ज्यादा है दिन में, सूर्य शक्ति है, मतलब जो पचन करने वाली शक्ति है वो सृष्टि में है, मन का विचरण ज्यादा है। इसके लिए जो आप खाओगे उसका क्लेद नहीं होगा, न क्लेदम उपगच्छन्ति धातवः, ऐसा चरक कहते हैं। और उसके बाद जैसे अच्छे दूध में नया दूध भी मिलाया गया तो वो विकृत नहीं होता, उस प्रकार से किंचित आम शिल्लक रह गया, फिर भी आपने कुछ खाया तो ज्यादा विकृत नहीं करेगा। लेकिन सायंकाल में आहार किया, फिर बाद में सूर्य शक्ति नहीं है, दिन में रात्रि में कुछ नहीं है, रात्रि में पचन करने की शक्ति नहीं है, शरीर चेष्टा कम हो चुकी है, मन का विचरण कम है, इसलिए पचन करने में देर लगती है और शरीर के में क्रोध उत्पन्न होता है। अब जैसे देखा, दूध फट गया है, मतलब खराब हो गया दूध, उसमें हमने अच्छा दूध मिलाया तो अच्छा दूध भी फट जाता है। ये उदाहरण चरक ने दिए है, मेरे उदाहरण नहीं है, चरक के उदाहरण है। उसी प्रकार से अल्प दोष भी रात्रि के अजीर्ण में रहेंगे, उसमें आप दूसरे दिन सुबह कुछ खाओगे तो बड़ा अजीर्ण, बड़े व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए देखिए, दो चीजें हैं, मैं उदाहरण के साथ बता। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको ना कई दिनों से, कई वर्षों से शिरशूल था, और वो सुबह उठने के बाद 11-12 बजे शिरशूल शुरू हो जाता था और वो दिन भर रहता था। तो उसको सूर्यावर्त है ऐसा करके ट्रीट करते रहे थे, लेकिन उसके हेतु किसने निकाले नहीं। उसका हेतु क्या था, उसको सुबह 7 बजे भूख लगती थी और वो खाता नहीं था। मैंने उसको सिर्फ बताया कि 7 बजे आप कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में लिक्विड नहीं लेना है, कुछ ठोस पदार्थ लेने हैं, जैसे फ्रूट है, कोई भी फ्रूट, मतलब जो जिसमें पानी कम है, ऐसा कुछ खाना है। बस इतना बदलाव कर दिया उसके लाइफस्टाइल में, उसका शिरशूल ठीक हो गया, उसको बाद में किसी प्रकार की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल एक चेंज किया मैंने, क्या, सुबह ब्रेकफास्ट करिए। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट बंद करने पर वो ठीक हो जाते हैं। उनका ब्रेकफास्ट बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर शिरशूल है, अंगमर्द है, मल विसर्ग नहीं हुआ है, और अगर वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अजीर्ण अवस्था में है, वो खाना खा रहे हैं। जो रुग्ण पहले का था उसका आहार उत्तम पचन हो जाता था, और फिर अन्न न मिलने से वात प्रकोप होकर शिरशूल हो जाता था, उसको हमने अन्न दे दिया तो वो ठीक हो गया। ऐसे दोनों प्रकार के रुग्ण मिलते हैं। दूध पीते लोग, दूध, आज का दूध ये दूध नहीं है, दूध आज का विष है। दूध बिल्कुल मत पीजिए। दूध, अगर आपके सामने घर में गाय है, आप खुद उसको खाना खिलाते हो, वो घूमती है गाय, दूध देती है, तो ही दूध पीजिए उसका।
पिशवी में थैली में आया हुआ दूध बिल्कुल मत पीजिए। चाय ठीक है, चाय कॉफी पी लिया, पर खाली दूध मत पीजिए, वो विष है आज का। दूध बंद करने से कितने रोग ठीक होते हैं हमारे, केवल दूध बंद करने से। इसलिए वो रुग्ण क्या गलत करता है इसका विचार करना पड़ता है। Yes, sir. So next question, how nidra is affecting in ahara, jeerna and ajirna? वही मैंने अभी जो बताया कि एक निद्रा वेग है। अगर आप ठीक से निद्रा ले लोगे तो आपका पचन करना अच्छा हो जाएगा। अगर जागरण कर रहे हो या अति मात्रा में भी निद्रा कर रहे हो तो भी पचन में अग्नि ठीक से काम नहीं करेगा। As you said, these days the rice and godhuma used are mostly nava. What can be done for reducing the bad effects of it? अब आपको पता नहीं है कि ये कब तैयार हुए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आज अभी समझो आपको आप खरीदी करने वाले हो तो एक 10-15 किलो तंडुल या ज्यादा 50 किलो, हम ये घर में करते हैं कि 50 किलो 100 किलो तंडुल या गेहूं ऐसा परचेस करके रखते हैं और वो किसी अच्छे से बर्तन में भर के बाजू रख देते हैं और वो नेक्स्ट ईयर निकालने के उस दिन उस साल में जो खरीदी करेंगे वो उसके नेक्स्ट ईयर में सेवन करेंगे। ये तो कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते हैं। Yes, sir. Namaste, sir. In swapnas are related to manasika dosha. Is swapnas are related to manasika doshas? What is the treatment for swapnas? स्वप्न आर नॉट रिलेटेड टू मानसिक दोषा। नो, मैंने कहा ये शारीर दोष है। आप स्वप्न की जो व्याख्या है वो जाके पढ़िए इंद्रिय स्थान में। वात पित्त श्लेष्मा, जब मनोवह में जाके बैठते हैं तभी स्वप्न आते हैं। मानसिक दोष से स्वप्न अलग गठन है, इसलिए शोधन करना यही चिकित्सा है। कई लोगों को स्वप्न आते कि सपने में नाग आते हैं, सर्प आते हैं, वो डरते हैं, तो उनको शोधन एक वमन दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। Yes, sir. Next, sir, अजीर्ण आहे, अम्लपित्त झालेला आहे, मधुर अवस्था पाकात झोपेत असेल and पेशंट झोपात असेल पण झोपून उठल्यावर पण अजीर्णच आहे व भूक लगते त्यावेळी। सर, इट इज इन मराठी। हाँ ठीक है, मैं समझ में आ गया। इसको एक वमन दे दीजिए, सद्य वमन दे दीजिए, बाद में उपवास करने दीजिए और फिर संश्लेषण क्रम करके बढ़ा के उसको प्राकृत आहार में लाइए और ठीक हो जाए। यस सर। So what is the difference between व्याधि क्षमत्व and विकार विघात भाव? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। विकार विघात भाव ये प्रमेय दान में वर्णन किया है। विकार विघात भाव ये व्याधि क्षमत्व के ही संदर्भ में आता है। जो विकार है उसके जो भाव है उसके विपरीत के भाव होना शरीर में, ये विकार को नष्ट करेंगे और विकार के भाव के समान के भाव होंगे तो विकार बढ़ जाएगा। व्याधि क्षमत्व में यही है ना कि जिसके विपरीत जो व्याधि बल प्रतियोगी, यही भाव निर्माण करना, यही व्याधि क्षमत्व है। एक ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम शब्दों में उलझ कर रहते हैं हमेशा। शब्दों में मत उलझिए, उसके पीछे का लॉजिक देखिए क्या है। Yes sir. So next question by Dr. Siddhana Gowda KB. Sir, it's very nice presentation. Sir, clinically how to assess Dhatwagni Dushti? Please guide us regarding the same, sir. इसके ऊपर एक अलग सा व्याख्यान देना पड़ेगा। धात्वाग्नि का एक ऑलरेडी व्याख्यान दिया है मैंने। व्हाट इज धात्वाग्नि? आपकी क्या कल्पना है? सर, सिद्धन गौड़ सर, धात्वाग्नि की आपकी कल्पना क्या है? ठीक है, उनको मत पूछिए, मैं बताता हूं। ओके सर। धात्वाग्नि का अर्थ है जो आहार में उत्पन्न हुआ तेज महाभूत है, वही धातु के परिणाम में जब जाता है तो उस समय में उस धातु के अग्नि के अनुसार उसका नामकरण दिया गया है। तो जब अवस्थापक ठीक हो जाएंगे तो धात्वाग्नि भी ठीक हो जाएगा। उसकी ट्रीटमेंट क्या है? अवस्थापक ठीक करना, अवस्थापक को रीशेड्यूल करना, अवस्थापक को प्राकृत करना, यही धात्वाग्नि की चिकित्सा है। उसके अलग कोई चिकित्सा नहीं है कि ये द्रव्य रसाग्नि पर है, ये द्रव्य, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रंथ में कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं किया है। Yes, sir. Namaste sir. In Sushruta Chikitsa Anuvasana Basti chapter, Dallana Acharya has mentioned during night Vidagdha Ahara Rasa will be there. So Anuvasana Basti is contraindicated in Nishi as it caused dosha mala utklesha. Can you explain how Ahara Rasa status will be Vidagdha in Nishi time?
इट इज नॉट ऑलवेज। अगर आप अनुवासन देंगे उनको तो वो विदग्ध हो सकते हैं, क्योंकि स्नेह पचेगा नहीं रात्रि में। आप रात्रि 10 बजे में अनुवासन दे दोगे पेशेंट को, तो उसका पचन होने के लिए सूर्य शक्ति, सृष्टि में सूर्य नहीं है, ऊष्मा शक्ति जो है वो नहीं है, इसलिए उसका पचन नहीं होगा और उसका स्नेह का विधान होगा। ये जो वाक्य है वो स्नेह बस्ती के लिए, ये सार्वत्रिक नहीं है। हम लोग रोज रात्रि में निद्रा करते हैं, सभी को अम्लपित्त नहीं होता है। रात्रि में स्नेह बस्ती देने से क्या होता है इसका वर्णन नहीं, इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। Yes, sir. Questions are over in Google Meet, sir. Let me check whether questions are there in YouTube. No, sir. No, sir. No questions in YouTube. Thank you very much. Yes, sir. So it is a really great session, which I personally was awaiting for, because I exactly wanted about your view on the lifestyle, because we can get one point in all your videos regarding lifestyle. So it was my expectation to have all the points together, and it was successfully done, sir. I request Dr. Kiran to deliver vote of thanks. So namaste everyone. I would like to thank Vaidya Abhijit Saraf sir for a very informative and wonderful session. Your views on Ayurvedic lifestyle in immunity were very informative and useful for our clinical practice too. So thank you sir for clarifying several doubts and for also explaining the concepts related to Ayurvedic lifestyle like Dhatu Samya, Pathya, Samskara, then Agni Rakshana, Bhojana Kala, Manasa Bhava, Sadvritta and so on. So I'm sure all of our participants are benefited by your session, sir. Thank you so much. So Thank you very much. Thank you, sir. I also thank all of our participants for an active participation in the session. Thank you. Over to you, Sharad. Yes. Thank you, Dr. Kiran. So we'll be ending the session, and before ending, let me give some updates regarding the tomorrow's presentation. Tomorrow, Vaidya Suhas Kumar Shetty sir will be delivering a talk on role of Manas in immunity. So I request all the participants to be on time and join. And there is a change in the time of Dr. Bairi sir on 17th. It is not from 6 p.m. to 7 p.m. and it will be from afternoon 12 p.m. to 1 p.m. So we'll be updating with the posters regarding this. And I wholeheartedly thank Dr. Abhijit Saraf sir for always being with us as a guiding force behind all our activities. So whenever we approach sir with any of the idea, sir will be always ready to give their time. I can know how busy sir is in this time, and this is really meaningful celebration of Charaka Jayanti with sir's talk on the role of lifestyle in Ayurveda. So I thank once again from all the Aptas members to Dr. Abhijit Saraf sir, and I request sir to always support us in our future activities. Thank you so much, sir. And we'll end the session. Thank you one and all.